one and all. I welcome you to today the International Seminar on English Knowledge Tradition and National Education Policy 2020, which is jointly organized by the Department of Education of IQAC, Navru Kanya Mahavidyalaya, Lucknow. I, Dr. Sukhmani Gandhi, on behalf of the Navru family, extend a warm welcome to the dignitaries present on the dais, Madam Principal, academicians present here, industry professionals, the conference delegates, and entire faculty of Navyu Channel. The object seminar is to discuss and highlight the Indian knowledge vision, planning, and implementation in the national education policy. I'm sure today the discussion is going to have a profound impact to create principles that will resonate beyond the confines of this venue. Now, let us comment further the seminar further by illuminating this space with the symbolic wisdom of knowledge. We invite you all for the ceremonial lighting of the lamp. I'm delighted to invite Professor N.K. Agarwal, Professor Manjula Upadhyay, Madam Principal, Dr. Subhash Mishra, grace us with the honor of lighting the lamp. I would also request the convener, the co-convener, organizing secretary, and members of organizing committee to join and do the needful. In the glow of this lamp, we find unity and sheer commitment to the pursuit of knowledge, and we see the warmth of collaboration. Today's one momentous occasion today as it brings together some of the brightest minds from this field from all around the world. This plenary session today will be graced by intellectual deliberations from distinguished speakers present over here, Professor N.K. Agarwal, sir, Professor Subhash Mishra, Professor Emeritus Shiv Kumar Chaturvedi. We are elated, Professor Jayashankar Kant. We are extremely elated to express our sincere gratitude to our honored guests. And now I request the dignitary, please accept our token of gratitude. I would like to invite our Madam Principal, Professor Manjula Upadhyay, to present the token of gratitude in the form of a planted and memento to Professor N.K. Agarwal. I also request the committee to place the badges. Now I request the conference convener, Mrs. Aishwarya Singh, send the token of gratitude to Dr. Subhash Mishra. The token of gratitude is in the form of a planted and memento. We welcome you, sir, and we humbly request you to accept our token of thankfulness.
National education policy has covered many notions of our education system. Our academicians refer to it as tiny renaissance of the Gyan Parampara of our Indian knowledge system. Its eternal knowledge history develops Gyan, Vigyan, Jeevan Darshan as its guiding principles, with its evolution based on experience and experiments. Some world leader in knowledge and be the Vishwaguru, we need to rejuvenate and mainstream our Indian knowledge system, especially in the context of National Education Policy 2020. It has now tried to integrate our Indian knowledge system into the curriculum at all levels, especially at the higher education, so as to impart holistic education. In this direction, we are optimistic that the plenary session today will be a great learning platform for the academicians, researchers, industry professionals, and other stakeholders who are attending this conference, and this will help to expand their horizons of knowledge. Moving ahead, I would like to formulate that change is focus not on energy, not fighting the old, but building the new one. These words aptly describe our distinguished expert speaker, Professor N.K. Agarwal. Sir is a professor in the Department of Economics, University of Lucknow, with a rich teaching experience of approximately 37 years now. Sir is also the state coordinator of G20 in Uttar Pradesh, by, appointed by the Higher Education Department, UP. He has also received several fellowships, a few prominent ones being Commonwealth Staff Fellowship, ICSSR fellowships from Thailand and Paris, etc. His areas of specialization include managerial economics, macroeconomics, Indian economic issues, tourism, demography, and public health. Sir has worked on various research projects which are being funded from national and international agencies. He has more than 60 research papers also published to his credit. Sir is also one of the prominent speakers in DD News and DD India, where he is often called on for discussions and debates on the Indian economic issues. Overall, he has 15 books written to his credit, but the most common ones, the recent ones, which are the top of the time, include Varied Gyan Vigyan, Development Issues in Uttar Pradesh, and Modi Empowered Development. So the three most important books that have been the top of the time are Vedic Gyan Vigyan, Development Issues in Uttar Pradesh, and Modi Empowers Development. Now, right, Sir on the dais to address the gathering. और महाविद्यालय का बहुत बहुत आभार, विशेष रूप से प्रोफेसर मथुरा उपाध्याय का एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए बुलाया जिस पर थोड़ा सा डर ही लगता है। ऐसे विषय पर बोलने आजकल फैशन में बहुत सारे टॉपिक और इसमें हमारे कोलीग्स बैठे हैं, तो तीन निकालने में कोलीग्स से कौन हो सकता है। और तो मुझे लगता है मंजुला ने थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क दे रखा था। और 2020 का ये नीति आने के मुझे लगता है कंफ्यूजन कितना बढ़ता है, क्लैरिटी कम आ रही है। एक वैसे ही जैसे कोरोना के समय हर कोई नया नया मेडिसिन, इवन के मेडिकल साइंस वाले भी, उनको भी नहीं पता था। 2 साल बाद पता चला कि खटवा तो लिए जन्म है, किसी को दवा नहीं, आज तक उसकी दवा ही नहीं। तो जिसको हम लोगों ने वैक्सीन समझ के लिया, वो वैक्सीन है ही नहीं। दैट हैज बीन ओनली इमरजेंसी। तो अब ये भारतीय ज्ञान परंपरा यानी कि 2020
तो परंपरा शब्द ही यहाँ पर अपने आप में इतना बड़ा शब्द। अगर आप पाश्चात्य दर्शन से जाएंगे तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। परंपरा का मतलब बैकवर्डनेस, अगर हम पश्चिम से चलते हैं, मीन्स लैक्स साइंस, lacks motivation, lacks forward-looking approach, lacks any authenticity. This is the meaning of Parampara in Western philosophy with regard to Indian philosophy. मेरा अपना मानना है कि परंपरा का मतलब है कि जो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया से टाइम टेस्टेड होते होते, नेचुरल टेस्टिंग होते होते जो स्थापित हो जाए वो परंपरा। जैसे किसी कल्चर को समझना है तो सबसे पहले उसका फूडिंग समझना है, उसका फूडिंग क्या है। फूडिंग इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर लाइवलीहुड बट इट इज मोर देन दैट। और वो हमारे समृद्धि को भी बताता है, हमारे एजुकेशन को बताता है, हमारे साइंस को भी बताता है, और हमारे तमाम जितने भी आप अप्रोच बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली कल्चर इज ऑल्सो डिफाइंड। आप देखिए होली का पर्व, उसने कहा था यहाँ पर कि पापड़ और चिप्स चाहिए, ऐसा शब्द लग सकता है यहाँ पर, इससे क्या बात कर रहे हैं, तो सही रहा है, हमारे यहाँ होता ही रहता है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, होता ही रहता है, लेकिन क्यों होता रहता है? बात इसमें देखिए पर्यावरण जुड़ा हुआ है, इसमें ऋतु जुड़ी हुई, इसमें ड्यूरेबिलिटी जुड़ा हुआ है, इसमें खातिर के सरकार जुड़ा हुआ है। और अगर ये ना हो तो हम लोगों का चाहे जितना आप ले आइए 56 होकर पूरा नहीं हो सकता इसके लिए। ये क्या है, कोई नाच हुआ? हम लोग अपनी चीजों को कैसे डिसमेंटल करते हैं? तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, और ये चर्चा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन ऑफ इंडियन नॉलेज स्किल्स। अब हम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिवाइव भी कहाँ से कर रहे हैं? रिवाइव हम कर रहे हैं पाश्चात्य दर्शन के लिए। पर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, पश्चिम देखिए कितनी देर में आया और कितनी तेजी से आगे चला गया। नारी की आजादी वहां पर, समृद्धि वहां पर, विज्ञान वहां पर, इनोवेशन वहां पर, लॉ एंड ऑर्डर वहां, सारी चीजें कहते हैं। लेकिन अगर हम कुछ नहीं कहते, हम इट इज अनटेस्टेड सोसाइटी, अनटेस्टेड नॉलेज बेस्ड, थोड़ा सा झटका लग सकता है आपको इस बात का। वो कहते हैं कि उनका बहुत अच्छा विज्ञान है। कैसे हो गया? पाश्चात्य आर्थिक प्रभाव लगभग पिछले 200-300 वर्षों से है। पाश्चात्य आर्थिक विकास 300 वर्षों से ज्यादा पुराना नहीं, और 300 वर्षों में ही अगर हम आप देखते हैं कितनी चीजों का हम नुकसान आज कर चुके हैं। भूजल समाप्त, पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है, अब इतना आगे निकल चुका है कि वो रिवाइवल की स्टेज छोड़ चुका है। बायोडाइवर्सिटी, ध्यान दीजिए, बचपन में हमने कितने प्रकार के आम खाए, जो एक घर पे रहो, कितने प्रकार की गेहूं की वैरायटी रही होगी सब। अगर ये हमारा विकास है कि जिसमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस कितना तेजी से हो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस कितना तेजी से हो। हमारे यहाँ फॉरेस्ट को छोड़, फॉरेस्ट को आजकल फैशन की तरह डिस्कस होता है
कि फॉरेस्ट होना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है, इस पर हम लोग काम, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। पश्चिम की एक बड़ी अच्छी बात, बहुत तेजी से उभरता और बहुत तेजी से नीचे जाता, फिर वो उभरने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखिए यहाँ हमारा विज्ञान है। उदाहरण एक देता हूँ, बिना प्रमाण के बात नहीं करनी चाहिए। वो आरोप है। पश्चिम का विज्ञान कहता है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, वैसे वैसे पर्यावरण पहले नष्ट होगा फिर ठीक होगा। ये कहते हैं ना, और कहते हैं हमने अपना पर्यावरण ठीक रखा। और कहेंगे ज्ञान में पर्यावरण कहाँ से आ गया। पश्चिम में क्या किया, ये तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमने विकास विनाश के माध्यम से प्रारंभ किया। कैसे कि पहले हम पर्यावरण को और नेचुरल रिसोर्सेज को क्षति पहुंचाते, ये उनका मॉडल कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनकी थ्योरीज कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि जब हम वृक्ष उगाते हैं तो हम पर्यावरण को सुधारते हैं। तो कैसे सुधारते हैं जरा देखिए। All dirty industries have been shifted to Mexico, the backward China और Paris। लेकिन क्लाइमेट चेंज का क्या हुआ, वो तो बॉर्डरलेस है। आज क्लाइमेट चेंज किसी वजह से हो रहा है, ये 200 वर्षों के पश्चिम आधारित विकास प्रणाली से। तो वहां पहले 200 साल बहुत बड़ा होता है, मैं कहता हूँ 20,000 साल ज्यादा बात। 200 साल में इन्होंने क्या टेस्टिंग किया, जब से इनका अर्थशास्त्र आया तो समाजशास्त्र को नहीं गिरते उसके मैं उसकी बात नहीं कर रहा। समाजशास्त्र वाले क्षमा करेंगे कि शिव का तो समाजशास्त्र बहुत अच्छा है, ये कोट करते हैं, कोट करना चाहिए, वो अलग बात है। यहाँ पर 20 वर्ष की आयु का पहला काम ये होता है कि क्रिमेशन का इंश्योरेंस कराना पड़े जिस समाज में। तो समाज कैसे करेंगे, या आज हमारे समाज में जब इतना पाश्चात्य जो है इंटरवेंशन है, उसके बावजूद कोविड में लोगों ने अनजाने लोगों का ध्यान रखा है। सब प्रकार की क्रिमेशन भी रिसर्च, ये बेहतर हुआ या ये बेहतर। उनके यहाँ इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा वो हमको एक चीज और नहीं बताते हैं, दे आर बेसिकली अन, कोई भी ज्ञान, कोई भी विज्ञान अगर अनएथिकल होता है नॉट सकते। आप सब जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कितने वर्षों में रिच हुआ है, मैक्सिमम 300 ईयर्स, यही तो है। इसके पीछे का इनका कोई इतिहास नहीं मिलता है बिजनेस का। इन 300 वर्षों में इन्होंने सैकड़ों देशों को कॉलोनी बनाकर वहां लूट किया। अपनी वजह से नहीं हुआ, इसको नहीं बताते। आज भी उनका सबसे बड़ा अनएथिकल का एक प्रमाण देता हूं मैं। आप कहेंगे हमें तो अपनी पुरानी बात बतानी चाहिए थी, ये क्या बता रहे, बताना इसलिए कर रहा है कि जो हमको चुनौती दे रहा है, हम पहले उसको तो समझे चुनौती देने का उसको अधिकार है या नहीं। कोविड में हमारे यहाँ से कोविड का वैक्सीन बना, एक्सपोर्ट भी हुआ, फ्री में भी दिया गया कई कंट्रीज को। लैटिन अमेरिका की एक कंट्री से भारत की एक कंपनी का करार है। ये चीज अमेरिका को बुरी लग रही कि हमारे मोहल्ले में भी आके बेच जाएंगे, ये बहुत कम दाम। उन्होंने क्या किया, उनका फायदा दिख नहीं रहा था। उन्होंने क्या किया, उनके अपोजिशन को उकसाया, जैसा होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। और वहां इतना ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया कि वो खराब कंट्री, फिर उन्होंने अपना बेचा। और ये तय के बेचा कि भारत का तो 83 से 86% का ही है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है।
और हमारा 93 to 97% तय करती है। और क्या रिपोर्ट निकल के आई साल भर पहले? लेस देन 50 ऑफिशियल रिपोर्ट है। फाइजर का जो इफेक्टिवनेस था लेस देन 50%। क्या ये अनएथिकल बिहेवियर नहीं? क्या ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ? क्या ये किसी प्रकार का, जिसको कह सकते हैं किसी वरिष्ठ व्यक्ति का एक जिम्मेदारी वाला रवैया हुआ? When you are playing with the lives of the people in millions and millions, why? To have your hegemony and to earn money unethical. इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर अनएथिकल अब आगे आएंगे, क्या पश्चिम सस्टेन पाएंगे? सबके घरों के बच्चे जा ही रहे हैं और बड़े खुश होते जा रहे हैं, ऐसी बात तो बता रही थी। 2020 24 चल रहा है, 2020 आप देखेंगे कि पश्चिम के कई देशों की आर्थिक सामाजिक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित थी इन्हीं कारणों से। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? एट एवरी स्टेज देयर इज अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। हमारे किसी भी प्रणाली में आप देखिए, एजुकेशन हमारा सोसाइटी कल्चर से अलग नहीं हुआ। उनका एजुकेशन सोसाइटी और कल्चर को बहुत नहीं मानता। वो मान करके चलता है कि एजुकेशन इज अ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। हम उसको नहीं मानते। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक, आप मान सकते हैं बहुत सी चीजों में अच्छा है। तो अच्छा है, हमारे पास आज के दिन तुलना करने को है ही नहीं। हम अपना बेस लूज कर चुके हैं, इसीलिए हमको पीछे जाना पड़ रहा है। हम कंपेयर नहीं कर पा रहे कि वाई आवर साइड इज बेटर देन दियर। मैं प्रमाण देता हूँ, चलिए हमारा क्यों अच्छा रहा। हमारे पास हजारों वर्षों का इतिहास। अमेरिका के पास कितने वर्ष का इतिहास है? जो लोग इतिहास के होंगे जरा बता सकते हैं? 1776 के पहले का कोई इतिहास नहीं है ना। हम लोग तो 1500 साल राउंडिंग इधर करते हैं अपने यहाँ। कहीं वैदिक परंपरा की बात करेंगे तो कोई कहेगा 3000 साल पुराना था, कोई कहेगा 4000 साल था, कोई 5000, मतलब 1000 2000 साल तो हम राउंडिंग एरर कर रहे हैं। और उनका कुल इतिहास कितना है? आज भी 250 वर्ष नहीं हुआ। वो कैसे बता सकते हैं कि परंपरा क्या है? वो कैसे किसी चीज, बहुत सी चीजें टाइम टेस्टिंग के साथ आती है, उनके यहाँ कहाँ से हो सकता है? तो आप उनके शॉर्टेजेस देखिए। यूरोप का आप देखिए, यूरोप जब तक यहाँ उसने कानूनी नहीं बनाई, उसके पहले रिच क्यों नहीं? ये भी प्रश्न आना चाहिए। उसके पहले का उनका समाज कैसा था? उसके पहले का, बहुत से लोग रेफर करते होंगे, रेफरेंसेस देते होंगे। कोई बता सकता है 500 साल पहले का उनका कोई लिटरेचर कोट करते हैं क्या? कोई लिटरेचर है उनका 500 साल पुराना? हमारा देखिए तो आज भी वो उतना ही सत्य है, उतना ही एप्लीकेबल है, भले कि मोबाइल आ गया हो, इंटरनेट आ गया हो। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि संजय ने जो है बहुत दूर से देख लिया था, वो दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा चर्चा को। मेरा कहने में जब प्रमाण से दीर्घकालीन देखिए, किसी भी परंपरा को बनने में एक नेचुरल टेस्टिंग होती है। क्या पश्चिम के पास इस प्रकार का कोई प्रमाण है अदर देन लेबोरेटरी कंट्रोल्ड टेस्टिंग? हमारे यहाँ इस तरह का नहीं, लेबोरेटरी या कंट्रोल्ड टेस्टिंग नहीं। हमारे यहाँ नेचुरल टेस्टिंग है, जैसे सोसाइटी का। अब एक मैं और बताता हूँ, इकोनॉमिक्स का उदाहरण देता हूँ। ये हमारी अपनी किताब में है, सारी भारतीय ज्ञान संरचना का नाम तो नहीं दूंगा मैं, तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आर्थिक मुद्दे पर है। एक इकोनॉमिक्स वाले और उससे जुड़े सब्जेक्ट वाले समझ सकते हैं। हमारा एक लाभ डिमांड बताया जाता है। लाभ डिमांड यह है कि जो उपभोग करता है उसका सुख उसी को मिलता है। यूटिलिटी में कहते हैं सुख उससे प्राप्त।
वो पश्चिम का, दूसरे को उसका सुख मिल ही नहीं सकता, ऐसा उनका कहना। ना भरोसा हो तो मोबाइल पर चेक या इकोनॉमिक सॉल्व से घर जरूरी माने थी। मैं अपने समाज का उदाहरण देता हूँ। खाएगा दो, सुख मिलेगा छह को, 10 को बारह। अच्छे ऐसे कितना तुम मैं अगर हमारी फिलोसफी कहा जाती है, किसी के घर में कोई ऐसी मिठाई है जो सबको लेके बच्चे से बूढ़े तक सबको प्रिय है, और लेकिन तीसरे दिन केवल 2 पीस बचता है। तो घरों में ऐसा ही होता है। हम 2 बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स और फिर ग्रैंड पेरेंट्स, 6 लोग हो गए, छोटा परिवार। अब जो पेरेंट्स है बच्चों के, वो 2 पीस लेकर के जाते हैं कि पेरेंट्स को दे, अपने पेरेंट्स को देने, यानी कि बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को देने। अब ग्रैंड पेरेंट्स का उनको अंदाज लग जाता है कि ये तो 2 ही पीस बचा है। तो वो कहते हैं हमारा तो मन ही नहीं है खाने का, 2 दिन बहुत खा लिया। ऐसे ही होता है ना अपने घरों में। ऐसा नहीं उनको पसंद नहीं, लेकिन उस समय उनका देखिए टेस्ट क्या डेवलप होता है। वो कहते हैं मुझे तो पसंद ही नहीं, मतलब आज कहीं नहीं, लेकिन 2 दिन ज्यादा खा लिया है। तो पहले सेक्रीफाइस कर चुके हैं, अगर मुस्लिम के हिसाब से करें तो हमारे ऐसे सेक्रीफाइस नहीं है ना, इसको सेक्रीफाइस नहीं करते, पश्चिम में सेक्रीफाइस है। हमने दिखाया है, आपको दे दिया, फिर सेक्रीफाइस नहीं है। तो नहीं सेक्रीफाइस हम बता रहा हूं। अब वो पेरेंट्स ले जाके बच्चों को दे देते, बच्चों को क्या पता 2 बचा है कितना बचा है, उनको मिला उन्होंने खा। पश्चिम के अर्थशास्त्र के हिसाब से केवल इन 2 बच्चों को सुख मिला, और हमारे हिसाब से 6 लोगों को सुख मिला। अब हो सकता है कि बाकी 4 को जो सुख प्राप्त हुआ उन बच्चों से ज्यादा मिला, हमको मिला कि बराबर निश्चित मिलेगा। हो सकता है ज्यादा भी सुख मिले, वो बच्चे खा रहे हैं। तो अब आप देखिए, ये दर्शन हमारे एजुकेशन में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप एनईपी पढ़ते हैं तो एनईपी में कहीं पर आपसे नहीं कहा गया है कि आप कितना सिलेबस पढ़िए, जोर किस पर है, खुद सिलेबस बना। हमारे यहाँ जोर किस पर है, आप केवल पहला पेज लीजिए, ज्यादा मत पढ़िए। एनईपी का केवल पहला पेज पढ़ लीजिए, जो 60-70 पेज का है, केवल पहला पेज पढ़ने में आपको एनईपी समझ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला पेज छोड़ करके हायर एजुकेशन भाग सीधे जो 30-40 पेज के बाद आता है, वहां मत भागना। आप केवल पहला पेज पढ़ो। वो क्या कहता है, वो कहता है मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ लोग काम कर सके, इसके लिए उनको तैयार कर, उनको अपने लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए तैयार करना। वो क्या तैयार कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तैयार करा। अंतर समझिएगा। फिर वो क्या कहते हैं, इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ मैन मेकिंग। साधारण शब्दों में कहूँ, इट इज एन एक्सरसाइज इन मैन मेकिंग। हमारे यहाँ एक चीज और बताते हैं, कहाँ से भ्रम आया एजुकेशन को लेकर। हमारे यहाँ रोजगार से इसको जोड़ने की बात चलती है। हमारे यहाँ से बेरोजगारी खा भी नहीं, तो रोजगार की जोड़ कहाँ से? उनका पूरा सिस्टम शुरू होता है रोजगार से, नौकरी से। हमारे यहाँ बेरोजगारी या रोजगार का शब्द ही कहीं व्यवसाय मिलता है ना, तो इतने भी लिटरेचर आप उठा करके देखिए, 200 वर्ष पुराना। आप रामायण जो रिसेंटली लिखा गया, जो सर्व गाय है, आप उसमें देख लीजिए, कहीं रोजगार बेरोजगार या इससे मिलता जुलता करता है नहीं। कहीं नहीं लिखा है कि कोई खाली बैठा होगा, कहीं नहीं लिखा। कहीं ये नहीं लिखा है कि लोग नौकरी ढूंढने के लिए राजा के पास गए।
ये क्या, पश्चिम में एक और गलत काम, उसकी कॉस्ट वो पे कर रहा है, हम लोग कुछ पे कर ही रहे हैं, वो भी पे कर रहे हैं। पश्चिम ने एक गलत काम जो किया, लोगों की निर्भरता राज्य पर पूरी तरह से घटा, सारी भैंस मर गई, सरकार मुआवजा दे। हमारा लड़का एक्सीडेंट करता है, एक्सीडेंट में मुआवजा सरकार, क्यों दे दे? यही तो है, गलती करने का अधिकार हमको मिले और खामियाजा भुगतने का काम सरकार करे, यानी कि समाज। सरकार क्या है? समाज। समाज किसी की व्यक्तिगत गलती की भरपाई क्यों करे? क्या इससे निर्भरता नहीं बढ़ रही? हमारे कभी हुआ ही नहीं। अगर इस तरह से होता तो राम आश्रय मिठाई वाले ये भी सरकार से सपोर्ट दिए होते, भाई हम भी मिठाई बनाना सीखेंगे, स्किल सीखेंगे। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए मॉडर्न के हिसाब से, आज की नई टेक्नोलॉजी आई, पर भोग वाले ने किससे सीखा? आप सोचिए, क्या इन्होंने इनोवेशन नहीं किया है? अगर नौकरी के परंपरा वाले कि पहले यहीं से हमको मिलना छोड़ना पड़ेगा, आखिरी ज्ञान परंपरा में हम जब जा रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा हमारा समाज कैसा रहा, हमारा आचरण कैसा रहा। तो बहुत सी बातें हैं, ये अंतहीन बातें हैं। तो मैं अपनी गाड़ी को यही रोकता हूँ, और पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, विशेष रूप से कॉलेज का और Thank you so much, sir, for your enriching words. Now, time to introduce our second eminent speaker who's present among us, Dr. Subhash Mishra. Sir is an associate professor in the Department of Education, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. He has more than 20 years of teaching experience in areas of socialization and curriculum development, inclusive education, and qualitative research. In the area of research, he has worked on two research projects and has publications in several journals, books of national and international repute. He has also been awarded by various organizations such as Acharya Naren Today, Samajwadi Sangathan Lucknow, IJEE Bhopal, and ISEE Chennai. It is our pleasure to invite Sir on the dais and share his views. थैंक यू सो मच। इतने शानदार विषय पर और सर विनोद सर ने जो कॉन्सेप्ट किया है, पहले तो मैं इस शानदार विषय पर आयोजन के लिए पूरे महाविद्यालय प्रबंधन और प्रशासन को बधाई देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रशासन विद्यालय का प्रशासन, अब मुझे ऐसा है इसलिए कह रहा हूँ, इसके पीछे निहितार्थ है। कोई भी असंगोष्ठी आयोजित होगी तो हर व्यक्ति कहेगा शानदार विषय, लेकिन यह विशेष प्रयोजन है इसे कहने का। और उसमें भी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में, यानी बात जो भारतीय ज्ञान परंपरा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में, तो मंच पर उपस्थित जनों और साथ में समक्ष बैठे सभी जो हमारे आचार्य जी, सबको राम निवेदन करते थे, जो प्रोफेसर अग्रवाल सर ने उनसे किया है, उसके आगे बात शुरू करते हैं। हमारे प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद पांडे सर, जो विद्या भारती के क्षेत्र संयोजक हैं और बीएसएमबी डिग्री कॉलेज में समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष और आचार्य हैं। सर आपका स्वागत है। आप करना चाहें या बाद में मैं बात अपनी कर बात हो रही थी कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन और एबीटी, आप
तो अग्रवाल तो ने बहुत समुची बात कही। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा। पर जब हम परंपरा की बात कह रहे हैं, ये बात समझना होगा कि जो भारत का लोक चित्त है, आप ध्यान रखेंगे, समाज चित्त से ही निर्मित होता है, समाज चित्त से ही संचालित होता है। और भारत का लोक चित्त भारत की लोक परंपराओं से आज भी चल रहा है। लेकिन भारत का शिक्षा चित्त, जो सर ने लिखे के प्रशासन न कहिएगा, बिल्कुल ठीक कहा, जो भारत का शैक्षिक जो हमारा हमने जो लिया है, जो हमारा मॉडल है, जो प्रशासन है, जो व्यवस्था है, वह भारत के लोक चित्त का बिंब नहीं है। यह बात मैं अभी आपके साथ कुछ उदाहरणों से साझा करता हूं। मैंने ये बात कही कि भारत का समाज भारत के लोक चित्त से साफ होता है। और जब हम लोक चित्त की बात करते हैं तो मैं इसका एक छोटा उदाहरण देता हूं। सर ने एक बात कही कि अगर हम बात करें पश्चिमी या भारत के शासन की और उनके प्रभाव की, तो 1500 साल, 1700 साल, 2000 साल का ही इतिहास और वह दूसरा प्रावधान। हमारा दोष भी यही है कि हम बार बार अपनी गलती को न देख करके, हमने चाय नहीं बनाई या कह करके दुकान बंद की, चीनी नहीं आई, दूध नहीं आया, दूसरे का दोषारोपण करते हैं। जब हम, जैसा कि डॉक्टर पांडे ने एक बात कही कि 1400 साल और 2000 वर्ष के प्रभाव पर हम इतने प्रभावित हैं, और जो हमारा इतना पुराना अतीत है उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण था? तो मैं फिर उसी बात को बताऊंगा कि भारत का लोक चित्र, भारत की परंपराओं, लोक कथाओं, लोक गीतों, लोक रीति रिवाजों से संचालित है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। गांव में क्या होती है, पंडित जी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, शुरुआत इनसे करते हैं, जम्बू दीपे भारत वर्षे भरत खंडे आर्यावर्ते राज्य, अमुक अमुक फिर आगे वो बताते जाते हैं स्थान। तो भारत क्या बताते हैं बच्चों को अपने, अपनी भारत की क्या कल्पना कराते हैं? आज भी कक्षाओं में भारत सीमित हो गया कन्याकुमारी से कश्मीर। हमने कक्षाओं में भारत को सीमित कर दिया, समाज ने नहीं सीमित किया है। भ्रष्टा भारत की हत्या करते हुए, उस बेहतर भारत को करते हुए, उसी बेहतर भारत के अतीत से गौरवान्वित होते हुए, भले ही वह लोक चित्त में रह रहा हो, हमेशा यह है हम कथित पढ़े लोगों ने सीखा। तो पंडित जी गांव में पूजा करने के लिए कहते हैं, हमारे लिए थोड़ी है, हमारा भारत तो जो, फिर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने का हम महिमा मंडन करते हैं, XYZ के द्वारा जो जियोग्राफिकल या भौगोलिक या जो मानचित्र दिया गया, हम उस मानचित्र की बात करते हैं, वो खंडित होकर के हमें मिला हुआ है। खंडित भारत की बात कर रहे हैं, छोटे से भारत की बात कर रहे हैं, वर्तमान ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल भारत उसकी बात कर रही। बात और बार बार हम पता नहीं क्यों उद्धृत करते रहते हैं इस बात को कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष समाज की बात करते हैं। हमें ये बात सोचना होगा, इस पर निर्णय करना होगा। आप धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, धर्मनिष्ठ की बात करते हैं, धर्म रहित की बात करते हैं, धर्म सापेक्ष की बात करते हैं, इससे हो जाएगी। आपने जो प्रोफेसर अग्रवाल कह रहे थे, आपने संकल्पना ही आप अपनी नहीं इस्तेमाल की है, आपने संकल्पना ही तो पश्चिम की ली है। चश्मा जिसका इसका लगाया है, सीधी सी बात है कि अगर हम चश्मा धूप का लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमें दिखेगा वो आपको काले चश्मे से और नंबर के चश्मे से तो अंतर आपको दिखेगा। हमने धर्म की जो परिभाषा की, नया धर्म की परिभाषा बहुत सी है, बहुत समय चला जाएगा, मैं इस नहीं आऊंगा, मैं मूल बिंदुओं की ओर आऊंगा। भाषिक बना सकते हैं, या तो अभ्युदान श्रेयस सिद्धि धर्म, किस भी माध्यम से अभ्युदय रहता, और अभ्युदय का भौतिक अभ्युदय, निश्रेय निश्चय मतलब आध्यात्मिक अभ्युदय, जिससे यह दोनों होता है, यानी भौतिक और निश्चय दोनों होता हो, मार्ग
वह माध्यम ही धर्म है। हमने तो धर्म को ये माना था, समझ आई होगी कि जो माध्यम और माध्यम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हम क्या कर गए माध्यमों पर, फिर हम बार बार धर्म निरपेक्ष की जगह, धर्मनिष्ठ की जगह धर्म रहित शिक्षा, और मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ यार, एक समझ का हूँ, मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, पंथ में भिन्नताएं हैं, ये अलग अलग है। पर भाई एक प्रश्न में कितने सनातन धर्म में तो ये इतना स्पष्ट किया गया, कितने देवी देवता की हैरानी है हमारी, रीति रिवाज में ही हैरानी है, यानी हैरानी नहीं है। तो एक्चुअली दिया है, आजादी दी है, जो रास्ते की है, निश्चय की प्राप्ति ही अभीष्ट है, और उसके लिए है। तो इसलिए मानव धर्म में ये कह दिया गया, जन्म विवृति बहुधा विभक्त, नाना धर्माणाम पृथ्वी यदि सहस्र धारा गंगनस्य निर्वहा ध्रुवे भेदो दस्पुरम। अथर्ववेद से कहा जा रहा है कि यहाँ बहुत अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, रहना चाहिए, और वे आगे बढ़े, एक घर में रहे, जैसे घर में व्यक्ति रहता वैसे रहे। तो ये 14 वर्ष की समस्या नहीं है, हमने गलती से जो अपना मापदंड तय किया है, शायद उसकी समस्या है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, जिस धर्म की जयंती हम लोग करते हैं, हमारे बच्चों को ये बताया ही नहीं जाता, या हम बताते ही नहीं है कि हमारी जो भारत की सीमा रही है, वो काराकोरम से लेकर के हिंदू का सुलेमान की धार पर्वत, और इधर समुद्र से घिरी हुई, और उधर अहोम यानी आसाम से लेकर के कोई दूसरा और अराकान है। यह सीमा को हम बच्चों को बताते ही नहीं है, जिससे उनके गौरव से हृदय भरता, ये हमारा भारत है। भारत की संस्कृति है, वह निश्चित रूप से उस बृहत्तर भारत में आज भी भारत के समाज में व्यापक है। जैसा कि दूसरी बात कर रहे थे सर अग्रवाल सर, कि भारत केंद्रित शिक्षा, भारत की परंपराओं पर आधारित शिक्षा, जिसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वकालत करती है और बात कहती है कि हम भारत की जो शिक्षा है, वह भारत की जड़ों, भारत की परंपराओं से आधारित करें। इंडियन प्राइड की जो बात करती है, क्योंकि जड़ों से जुड़ करके तो कैसे जुड़ेंगे, फिर हमें शायद कहीं ना कहीं एक गलती करते जा रहे हैं, और वो ये है कि भारत की परंपरा समृद्ध की परंपरा रही, और हमने गलती से काम करना शुरू किया है कि ऐसा ये कमी थी, लॉस को भी चिपका देते हैं किताब, यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो भाकर देखिए, जो विश्वविद्यालयों में इधर बदलाव हो रहे हैं, हमने क्या किया, इंडियन नॉलेज सिस्टम की कमी थी ना, और तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक पेपर लगा दो, जो कमी थी, चलो अपने ही पेपर में इंडियन नॉलेज सिस्टम भी लिख देते हैं, अब तो खुश, यही तो कमी थी, अब थोड़ी हो गई, हमें विचार करना होगा क्या हमने उस दायित्व को, जिस एनईपी 2020 आपसे अवसर दे रही है कि भैया अपनी कहानी खुद लिख लो। मैं इसका एक उदाहरण देते हुए कहते हुए, एक पुस्तक है लिखी है के प्रथम कुलपति सुंदरलाल, और उस पुस्तक का नाम है भारत में अंग्रेजी राज। उस पुस्तक को जरूर पढ़ें, और उस पुस्तक के मुझे लगता है 8वें 9वें पेज पर ही एक बात कहते हैं, कहते हैं कि जो भारत का इतिहास है, तो 90% गलत लिखा हुआ है, और यहाँ पर कहते हैं केवल राजाओं के नाम, घटनाओं को छोड़ दीजिए, उनके क्रम को छोड़ दीजिए, तो शेष सब जो कथानक लिखे हैं, वे कितने भ्रमित हैं, और उसका जो उदाहरण ऐसे कहते नहीं है, तो जरूर पढ़िएगा। उदाहरण देते हैं, और यहाँ पर काम देते हैं कि देखिए चित्र देख लीजिए, अगर मान लीजिए चित्र दिखा रहे हो किताबों में, इतिहास की किताबों में चित्र दिखा रहे हो, मुगल शासक का चित्र दिखा रहे हो, और फ्लैग में यूपी मराठा की, हो सकता है वो भाव रहा हो, लेकिन शासक भारत आएगा तो मराठा की जूती पहन करके भारत नहीं आएगा, भारत में रहते हुए अलग बात है कि वो मराठा जूती,
हमें अपने विषय वस्तु कहाँ से लेनी होगी, इस पर विचार करना होगा, क्योंकि मूल समस्या यह है कि हमने तो अपने पुराने, जिसे हम कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड मॉडल, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जो दोनों के जो से जो मॉडल हम लोगों ने डेवलप किया था, जिनके आधार पर ये सारे विश्वविद्यालय हम सब संचालित कर रहे हैं, उनकी आत्मा से जब तक हम मिक्स करके अपने भारत की आत्मा स्थापित नहीं करेंगे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं यहाँ करना चाहूंगा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार अपने नाम में परिवर्तन करेंगे। उससे पहले की शिक्षा नीति का आप नाम जानते हैं, नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन नहीं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी। शिक्षा राष्ट्रीय लेवल की बात नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, ताकि नेशनल पॉलिसी, पूरे देश की एक पॉलिसी बनाएंगे, शिक्षा कैसे दिलवाना चलेगा, यह पॉलिसी कह रही है। पर ऐसे यूं ही सनक में नाम बदल नहीं दिया गया है, कुछ वजह है नाम बदलने की। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन तो नाम पीछे से दो पॉलिसियों की चला आता रहा, और अचानक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनती है, नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा बनानी है, अपने राष्ट्र की शिक्षा तय करनी है। अपने राष्ट्र की शिक्षा के मापदंड भी आपके, आपके राष्ट्र की शिक्षा की आवश्यकता आपकी है, आपके राष्ट्र की अवधारणा भी आपकी है। राष्ट्र की अवधारणा के अनुरूप आपको अपनी शिक्षा की व्यवस्था करनी है। 1949 में सीवी रमन जी ने प्रयाग में साइंस कॉलेज, जो हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का साइंस डिपार्टमेंट है, उसको साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता रहा है, वहां के दीक्षांत समारोह में था था, when we import, we do not pay for our ignorance, but we pay for our incompetence also. हम केवल अपनी अज्ञानता के लिए नहीं पे करते जब किसी से कुछ लेते हैं, हम क्षमता के लिए भी उससे अदायगी करते हैं। और इसलिए इस प्रबुद्ध समाज को एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें वही लेना है जो हमारे पास नहीं है। हमें यह आदत बंद करनी पड़ेगी कि हमें सब कुछ हाथ से लेना है, यहाँ तक कि है वो मेरा है, यह बताने के लिए भी आपको ही उद्धृत करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो चश्मा आप पहनते ना वो वही डाला है जो आप वाला है, जो का चश्मा है आपकी जरूरत है, आप यहाँ पैदा है, तो उसे किसी मानवीकरण की हमने ठेका दिया है कुछ को नहीं। तो अगर आपने शर्ट पहनी है तो ये शर्ट कब कहेंगे जब हाँ वो परिभाषा जो पश्चिम में शर्ट वो होती है, जब पुस्तक आधारित होती है, अपने भाषाओं को स्वयं तय नहीं करना शुरू कर देंगे, आयात विचार से है। एक बात और है जहाँ ये मेरे कहने का आवश्यकता बात ही नहीं है कि पश्चिम ज्ञान की अवहेलना करनी, तो वो संस्कृत की है आनो भद्रा विषय, लेट आवर थॉट कम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, विश्व के हर कोने से ज्ञान आए। जिस परंपरा के लोग हैं, हम पश्चिम के ज्ञान का विरोध कहीं नहीं कर रहे हैं, हम पश्चिम के ज्ञान की उपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत के ज्ञान की तुलना, भारत के ज्ञान का मानकीकरण पश्चिम करेगा, यह भी स्वीकार्य नहीं। मैं अपने विश्वविद्यालय में एनआईआरएफ कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी हूँ, और जो रैंकिंग होती है उसके पैरामीटर्स देखता हूँ। नए के पैरामीटर्स आप सब यहाँ देख रहे हैं। कई बार आप इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी जब आपको ग्रेड सामने आती है तो बात लगती है कि आखिर आप चाहते क्या हो और आपके मार्क्स से कहाँ से। जब तक भारत की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होंगे संस्थाओं को मूल्यांकित करने की, जब तक पाठ्यक्रम को मूल्यांकित करने के भारत के मापदंड नहीं होंगे, हम पश्चिम के मापदंड के आधार पर निश्चित रूप से ध्यान के लिए सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हम उन पश्चिमी मानकों के आधार पर अपनी ग्रेडिंग लेकर के और बाहर बोर्ड लगाकर टहलते फिरें। नहीं नहीं, यूएस रैंकिंग में हमारा ये स्थान है। यूएस रैंकिंग के रैंक लेने के लिए कई बार मंच से लोग बोलते हैं कि देखिए हम भारत के लोग कभी यूएस रैंकिंग में ही नहीं जगह बना पा रहे हैं। यूएस रैंकिंग में जगह बनाना है कि भारत के समाज में भारत की शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक अच्छा व्यवस्था करना है। यह बात में विचार करूंगा।
राजनीतिक समिति अगर जड़े देखना शुरू करें तो भारत कॉन्फ्लुएंस की संस्कृति है, तो जानते ही नहीं आप थोड़े 200 किलोमीटर दूरी पर प्रयाग का संगम, ये संस्कृति है हमारी। कोई न्योता नहीं जाता किसी, कोई निमंत्रण नहीं जाता किसी, पूरे देश से लोग अपने आप। और उस समय अगर इलाहाबाद प्रयाग के सड़कों पर की ओर अगर कभी उस रास्ते पर जाइए तो देखेंगे ट्रैक्टर में, ट्राली में गांव के लोग पुआल डाल करके और चले आ रहे हैं। कॉन्फ्लुएंस, संगम, ये हमारी संस्कृति है। आपका संगम, विचारों का संगम, लोगों का संगम, कॉन्फ्लुएंस। और इसीलिए जब जब हम मल्टी एजुकेशन की बात की जाती है तो बच्चों के लिए नई नई बात होगी। अच्छा अच्छा जुड़ना है, हमारे यहाँ जुड़ना नहीं है, हम जुड़े ही हैं। कॉन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज, विचारों के संगम, ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ही कर रहे हैं। हमने भूला है, हमने उसे केवल धर्म की बात मान लिया कि अगर प्रयास जाते हैं, संगम में जाते हैं तो इसका मतलब कि धार्मिक यात्रा पर जाते हैं। हमने अपनी संस्कृति के उन तत्वों को शायद अपनी शिक्षा व्यवस्था में शामिल नहीं किया। ये आज जो कॉन्फ्लुएंस है, प्रोफेसर मंडला मैडम भाई की पात्र हैं, उन्होंने संच किया है। आप कोहियो विश्वविद्यालय से, अम्बेडकर विश्वविद्यालय से, आप विभिन्न विश्वविद्यालयों से, विभिन्न कॉलेज महाविद्यालयों से लोग आए हैं। कॉन्फ्लुएंस, ये जो संगम है, यही भारत की आत्मा है। भारत की इच्छाएं, शिक्षा संस्थाएं जब तक इस विचार को अपने व्यवहार का आधार नहीं बनाएंगी, निश्चित मानिए हम अपने शादी में नहीं पहुंच सकते। भारत की जो संस्कृति है उसमें हम सब जानते हैं, जैसा सर कह रहे थे कि हमारे यहाँ बेरोजगारी जैसी चीज नहीं थी, उसके पीछे एक कारण था। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हुनर और कौशल आधारित थी। और इसीलिए राष्ट्रीय नीति 2020 जब बाण भट्ट की कादम्बरी का उल्लेख करती है और 64 कलाओं की बात करती है, ईमानदारी से बताइए उन 64 कलाओं में से कितनी कलाओं को हमने अपने अपने एनईपी के कार्यक्रम में जो परिवर्तित किया है, कितना शामिल किया है। मैं उन कलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एक मॉडल है, अपने मॉडल आप अलग ले आइए। जरूरी नहीं कि उस समय की जो कलाएं थी वो आज प्रासंगिक थी, लेकिन वो एक मॉडल है जो बताता है कि शिक्षा कैसी हो। और एक बात और, मैं इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, अंतर मैंने वहां महसूस किया था जब मैं इंटरमीडिएट में साइंस रहा, प्रयाग विश्वविद्यालय गया तो प्रयाग विश्वविद्यालय में मैं बीएससी करने गया, बीएससी का फॉर्म लेने गया। एक मेरे परिचित ताराचंद हॉस्टल में रहते थे, उनके यहाँ रुका। और तब मोबाइल का टाइम नहीं था कि घर में मोबाइल से आप बात कर लीजिए, एक ही नंबर हुआ करता था, बड़ी मुश्किल से वो भी कहीं रिजूम। और बीएससी का फॉर्म लेने गया, वहां जाकर के एक नई चीज देखी, बीए का लड़का और ऊंची करके वहां पे रखा था कि मैं बीए कर रहा हूँ, और जो बीएससी का लड़का था बीएससी कर रहा हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं था। मैं अपने उदाहरण के निमित्त से दे रहा हूँ ये, और वास्तविक क्यों, क्योंकि वहां जो बीए करता था लड़का, बीए करने वाला लड़का परसेंटेज की चिंता नहीं करता था। कल बीए का एग्जाम है फाइनल, और रात में जैसे उसको क्रॉनिकल आती है, वहां पे होता था फ्राइडे, महीने की फ्राइडे को आएगी, शुक्रवार को क्रॉनिकल आई है, दर्पण आई है, दर्पण और परिचय रहा होता था सवेरे का पेपर ढूंढने को कितना सही है। वजह मैं दूसरी तरफ बोलना चाहता हूँ कि वहां कला यानी बीए आर्ट्स को एक अलग दृष्टि से देखने की वहां रही। तो उसके परिणाम में लंबे समय से काम काफी सेवाओं में बहुत विश्वविद्यालय ने बड़ी भूमिका निभाई, जैसे वहां का साइंस कॉलेज साइंस भी बहुत ही श्रेष्ठ रहा है, कहीं से काम कर रहा हूँ जहाँ कहने का उद्देश्य है। हमारे यहाँ जो कला है उसे केवल सामान्य जिन्हें हम कला कह देते हैं, कला कौशल कह देते हैं, वही तक नहीं है। हम लिबरल आर्ट की बात करते हैं। भारत लिबरल आर्ट की बात जब करता है तो लिबरल आर्ट कहते ही बहुत स्पष्ट समझिएगा, कला की परिभाषा हमारे यहाँ की गई है। कहा गया है
कि शक्तो मोको अपि यत् कर्तुम कला संयुक्त तत्कृतम्। वह जो कोई मूर्ख व्यक्ति, बहरा व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति जो कर सके, करने के सक्षम हो सके, वह कला है। यानी निश्चित है कि कला का मतलब केवल फाइन आर्ट्स, केवल गीत संगीत नहीं है। और मानव जब चौसठ कलाओं की बात करते हैं, कहते हैं नॉट ओनली सब्जेक्ट एज सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, बट ऑल्सो साइंटिफिक फील्ड ऑफ इंडियन आर्ट। साइंटिफिक फील्ड जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, फिजिकल फील्ड जिसमें मेडिसिन और सर्जरी की बात करते हैं, साइंस स्किल्स जिसमें कम्युनिकेशन और डिबेट डिस्कशन की बात करते हैं, 64 कलाओं की बात है। और हम जब अपनी पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो इंगित किया है, देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण की जरिए रखता हूँ। भारत की परंपरा है, वह प्रवचन संधान की परंपरा है, प्रवचन संधान शोध की परंपरा रही है। तो अब हम बार बार कह रहे हैं कि जी नहीं, भारत की कुछ शिक्षा संस्थाएं या भारत की संस्थाएं ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान की केंद्र रही हैं। मैं बहुत ज्यादा पुराने इतिहास से उदाहरण नहीं देती हूँ क्योंकि समय की सीमाएं हैं। मैं आगे करना बढ़ूंगा। हमारे यहाँ जो भारत की परंपरा रही है, उसमें मैं एक उदाहरण देता हूँ। शायद ये उदाहरण इसलिए आवश्यक है कि अभी कल तो वाइस चांसलर साहब जब यहाँ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने नीति इम्प्लीमेंट की है, और कल बात कर रहे थे कि कैसे बहुत सारे विषयों की, और हमारे शिक्षकों को चिंता देख रहे थे कि सर ये वाला विषय आएगा नहीं आएगा, पेपर में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। मैं एक आग्रह करता हूँ इस मंच के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको अवसर दे रही है कि अपनी करिकुलम में सुधार कर लीजिए, अपना करिकुलम तय कर लीजिए, अपना करिकुलम तैयार कर लीजिए। ईमानदारी से बैठिएगा, अपना विषय उठाइएगा, देखिएगा कि हम जो सिलेबस बनाते हैं उसके पीछे जो रेफरेंस दे रहे हैं वो कौन सा दे रहे हैं। और मजेदार बात ये है कि उनमें से आधे तो अप्राप्त हैं, मिलते ही नहीं है, तो उपलब्धि नहीं है, पुस्तकालय तक में उपलब्ध नहीं। आधे अप्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमने लागू कर दिया, हम घोषित ही कर रहे हैं, पर उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बहुत सारे तत्व भी ले आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या हम अपने विद्यार्थी को कुएं को दिखा रहे हैं, वो पानी पिएगा नहीं पिएगा छोड़ देगा कोई बात नहीं, पर अगर कुआं जानता रहेगा तो दिन रात आएगी तो जरूर मिलेगा। क्या हम अपने विद्यार्थी को कुएं तक ले जा रहे हैं? मैं इसका छोटा सा उदाहरण गणित विषय को देता हूँ। तो वजह क्या है? एक दिन मैं ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पुस्तक ध्यान दे रहा था, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उन 18 चिंतकों के नाम लिखे हैं एक साथ। भारत का ज्ञान परंपरा एक मॉडल दिया है, और उसमें देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम किस तरह प्रतिनिधि, बड़ी लंबी परंपरा, कितने नाम दिए? 18 नाम दिए। और उन 18 को उठाकर देख लीजिएगा जो मैं बात कह रहा हूँ मैं सिलेबस को, उन 18 में से 5 नाम छोड़ दीजिए, शेष 13 नाम या तो दर्शन में मिल जाएंगे या थोड़ा संस्कृत में मिल जाएंगे। लेकिन गणित जैसा विषय, जब पिंगल को पढ़ने की बात आती है तो पिंगल कितना गणित में आते हैं देख लीजिए। NEP 2020 पिंगल की बात करती है, और इंटरनेट पर जब गूगल करेंगे तो आपको क्या सामग्री उपलब्ध होती है, जबकि बड़ा शास्त्र पूरा का पूरा हमारे है। तो शायद गणित की बात करें तो वैदिक साहित्य, लगधा, शल्वसूत्र, गौतम के न्याय सूत्र, पौधायन, तपास्तंभ, कात्यायन और पाणिनि के अष्टाध्यायी, ध्यान दीजिएगा। पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ाएंगे, मल्टी एजुकेशन आएगी ही आएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऐसा नहीं है कि यहाँ का जोड़ा वहां का जोड़ा 4 जगह का जोड़ करके और कुंड बना दिया, ऐसा नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन आवश्यकता है। अगर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन बनाएंगे तो करिकुलम अपने आप इतना खूबसूरत होगा, इतना शानदार होगा
कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि विषय जिसे हम इतना गहरा समझ रहे थे, जिसे हम समझ रहे थे कि ये केवल हमारी बिरादरी का मामला है, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स वाले हैं, हम साइंस वाले हैं, आप कॉमर्स वाले हैं, हमारी अपनी बिरादरी का मामला है। ऐसा नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान की सीमाओं को हमने तो सीमित किया है। ज्ञान, खंडित ज्ञान की जो परंपरा हमने शुरू की है, हमारी परंपरा होलिस्टिक एजुकेशन की रही है। होलिस्टिक एजुकेशन ही हमारा आधार है। और निश्चित मान के चलिए कि हम जब ये बाणभट्ट को गणित में पढ़ाना शुरू करेंगे, अष्टाध्यायी उनकी बताना शुरू करेंगे, पाणिनि की बात करेंगे, पिंगल के क्षुद्र शास्त्र की बात करेंगे, आर्यभट्ट की बात करेंगे, वाराणसी की बात करेंगे, भास्कर प्रथम की बात करेंगे, ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे, ग्रहण की बात करेंगे, श्रीधराचार्य की बहुत मुश्किल से हमें याद है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला एक हुआ करता था, इसके अलावा हम तो कभी नहीं जानते थे कि श्रीधराचार्य कौन थे, कहाँ के थे, क्या थे, केवल एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला बड़ी मुश्किल श्रीधराचार्य को कक्षाओं में केवल स्नातक और स्नातक नहीं, शायद कक्षा 6 में या 1, 2, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में बहुत आवश्यकता है। हम केवल चित्र दिखाए बच्चों को, ये तुम्हारे पूर्वज हैं, कहीं आगे नाम बताएं उनके, आगे बताएं उनके, उनके कुछ गुण बताएं उनके, शायद मन बना सके का निर्माण सबसे इसके कारण। जब तक नहीं बनेगा तब तक चिंता भी नहीं बनेगी, जब तक हम अपने इस जो शिक्षा व्यवस्था है उसके मूल में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी तरह से जयदेव को पढ़ाएंगे। जयदेव हमारे गणित के विषय ही नहीं होते, जबकि जयदेव का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिसका गणित मिला, सिद्धांत सीखा, नारायण पंडित, राम के माधव, जो फाउंडर ऑफ केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में। आप बताइए कभी गणित में आपको इनका नाम सुनने को मिला हो? केवल ग्रंथों में सीमित रहते रह गए। नारायण पंडित के अलावा केरल के भी परमेश्वर, नीलकंठ सोमायानी, मुनीश्वर, कमलाकर, ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें केवल उदाहरण स्वरूप दे रहा हूँ। नाम बड़ी लंबी है, हर विषय उठाएंगे उससे लोग मिलेंगे तो प्रश्न उठता है कि क्या करें, इनको हम ऐसे ही अपने सर्कस में डाल दें? जी नहीं। जब आप अपने करिकुलम का निर्धारण करें, उनके प्रसंग के अनुसार उन्हें स्थान दें, संदर्भ ग्रंथ में स्थान दें, कम से कम एक वक्त आएगा जब विद्यार्थी इन किताबों के नाम समझेंगे, पुस्तकालयों में जो है उन साहित्य को उपलब्ध कराएं, विद्यार्थी उन पुस्तकों में पढ़ सकें, उन तक जा सकें। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह सब 18वीं शताब्दी तक भारत के विद्यालयों में था, और इसका प्रमाण भी दे रहा हूँ। बीच के थोड़े से वर्षों में हमने गड़बड़ी की है। अब जब हमने ऑक्सब्रिज मॉडल पर भारत के विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी शुरू कर दी, जैसे ही हमने कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, ये जो ऑक्सब्रिज मॉडल पर जो विश्वविद्यालय स्थापित किया और उसके बाद इसकी जो परंपरा शुरू की, वहीं से गड़बड़ी हो रही है। इसका ध्यान दीजिएगा क्यों? 18वीं शताब्दी में मैं उदाहरण दे रहा हूँ और प्रॉपर रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर धर्मपाल जी की पुस्तक है, इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स पेपर 1831-32 वॉल्यूम 9 पेज 487 ध्यान दीजिएगा। वह पुस्तक और यह रेफरेंस किसी भारतीय ने नहीं लिखा, किसी ब्रिटिशर ने भी किताब के रूप में नहीं लिखा है। भारत में शासन कर रहा उस समय का वायसराय चिट्ठी लिख रहा है अपने शासक को कि भारत की ये दशा है, यहाँ ये बदलाव करने हैं, पर भारत की ये समस्या है, भारत में ये पढ़ाया जा रहा है। तो धर्मपाल जी ने उन पत्रों को लंदन की पुस्तकालय वहां जाकर के संसद में, वहां के पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से उन पत्रों को निकाला है और उन्हीं पत्रों को सीधे सीधे अपने उस पुस्तक में छापा है। मेरा आग्रह है कि आप सब जरूर एक नजर देखिएगा। 1831-32 की बात है ये, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। 125 साल, 150 साल पहले भारत के महाविद्यालय में जो विषय पढ़ाया जाता हो और अचानक विश्वविद्यालय से गायब हो जाए, बाहर हो जाए, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? सबसे हमें शासन मिल जाए, इसके बाद भी हम 100 साल अगर लगभग 75 साल बीत गए हैं तो आजादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हम वापस न ला पाए, कौन उत्तरदायी होगा? इसलिए मैं आपको कहता हूँ। और मैं उदाहरण देता हूँ, समय देते हुए कुछ इनकी प्रतिभा दूंगा। साबित बेलारी जिले, बेलारी जानते हैं आप लोग, बेलारी जिले में जो कॉलेज थे उसका उदाहरण दिया गया है।
और लिखा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या थी, रामायण महाभारत भागवत, यूज्ड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस, ABCD ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही आपके पास का अकाउंट जैसा लिखा है, उसमें लिखा है नागलिंगायन कथा, विश्वकर्मा पुराण, कमलेश्वर कालिका मेहता, सबसे लिखा है यूज बाय लिंगायत चिल्ड्रन, तो लिखा है लाइसेंस लिटरेचर भी, इसमें पंचम फिर लिखते हैं डिक्शनरी एंड ग्रामर, इसमें 7 पुस्तकों की बात करते हैं और 42 पुस्तकों की सूची देते हैं और कहते हैं कि राजमुंदरी के विद्यालयों में ये पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, कैसे इन्हें हटाया जाए और अपना विषय लाया जाए, ये समस्या है। तो 1810 में यह हमारे भारत की स्थिति थी। आज सबको विचार करना होगा कि हम कैसे इन लोगों को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाए। संघ की भाष्य सूत्र, रामाचार्य की शीत भाष्य, माधवाचार्य के गीता भाष्य, नागार्जुन के मूल माध्यम कारिका, विघ्नाथ के प्रमाण समुच्चय, भरतमल के नाट्यशास्त्र, संजय का योग सूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विश्वकर्मा का तंत्र, शुद्ध संहिता, मतलब की समुच्चय, आर्यभट्ट, वाराणसी, नारद का शिल्प शास्त्र, मायामणि का महामाया माता का जो शिल्प बिल्डिंग का सिद्धांत है, हेम शर्मा का शिल्प कौतूहलम, यह सब जब तक हमारी दिनचर्या के नहीं होंगे, आश्चर्य में जहां की आवश्यकता है, संदर्भ नहीं होंगे, यह मान के चलिए कि हम उस वृक्ष की स्थापना कर रहे हैं जिस वृक्ष से शायद हम दूसरे फल की कल्पना कर रहे हैं, कि जमीन अलग है, जड़ें हैं, वातावरण अलग है, शायद हमें विचार करना होगा कि कैसे हम इन विषयों को अपने अंदर समाहित करें। मैं यह बात कहते हुए एक बात हुई कि अटल जी ने कहा था, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी भरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, ये सूरज परछाई से हारा हुआ है, 150-200 साल के उस कालखंड से हारा हुआ है, कालखंड की मानसिकता से हारा हुआ है। अगर शायद अपने उस आप को एक बार समझ जाएगा, अपने उस संदर्भ को एक बार समझ जाएगा, अपने श्लोक को एक बार समझ जाएगा, फिर आवश्यकता नहीं होगी तो ये कहते हुए कि अंतरतम आगे जो है, नहीं बस में बात लीजिए, देख लीजिए, बुझी हुई बातें सुलझाए, बुझी हुई बात सुलझाए। इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा करना नहीं चाहिए, आह्वान करता हूँ और बधाई देता हूँ तो मंजिला मैडम को, उन्होंने इतने शानदार विषय पर इसमें ये आयोजन किया है, क्योंकि हम सब बार बार विश्वास करते हैं इनकी बड़ी इम्प्लीमेंट करती है, सब कुछ बाकी है और वो किसी और के हिस्से में नहीं बाकी है, सरकार ने दे दिया, सरकार ने अवसर दे दिया, हमारे आपके हिस्से का बाकी है, इसी आह्वान के साथ Thank you so much, sir, for this knowledgeable session and tracing our roots back to the rich eternal history of our Indian knowledge tradition. Now we are delighted to have our honored guest amongst us, and we feel elated to express our sincere gratitude and welcome him by presenting a planter and a memento. I request Dr. Vinita Singh, co-convener of the international seminar, to come forward and present him the token of gratitude. I request the audience to please welcome sir. There is a Professor Jay Shankar Pandey among us. Thank you so much, sir, for joining us. Taking this further, I would like to quote, you cannot discover a new ocean until you have the courage to lose the sight of a shore. One such personality who lives by his words is our eminent speaker, Professor Jaishankar Pandey. Sir is working as a professor in the Department of Sociology, BSND Lucknow. He is also the coordinator of Vidya Bharati Uच्च Shiksha Sansthan, Eastern UP. With an enriching teaching experience of 30 years, his areas of specialization are Indian knowledge system, women's studies, Indian sociological tradition, government policies and programs on education, and empowerment of persons with disabilities.
Sir also contributes for the social cause where he is associated with the organization Saksh Seva Sangathan that works for the empowerment of persons with disabilities. Professor Pandey has worked on several research projects and has been receiving several fellowships. Now I would like to invite him on the dais and enlighten us on the topic. I welcome sir. शेख इमाम इकोनॉमिक्स में शिक्षा देने वाले आदरणीय मनोज जी, इस महाविद्यालय के यशस्वी प्रिंसिपल गढ़िया मंजिल उपाध्याय जी, अभी जिनका उद्बोधन काफी हम लोगों ने सुना, लंबा अध्ययन ये नॉलेज सिस्टम का, ऐसे हम लोग के बीच में युवा एवं यशस्वी वक्ता आदरणीय सुभाष जी, इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजिका प्रतिभान ऐश्वर्या जी, यहाँ पे उपस्थित सभी सम्माननीय शिक्षक शिक्षागण, छात्र एवं बंधु बांधव, इंडियन नॉलेज सिस्टम मूलतया राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दो ही बिंदु समझ में आते हैं। एक पे अपनी भाषा पे, क्षेत्रीय भाषा है उस पे ध्यान देना, उसमें अपना संप्रेषण करना, अपनी किताब लिखना, पढ़ना, बोलना, उसी में जीना, उसी में अपनी संवेदनाओं का संप्रेषण करना और संप्रेषित होना। और सेकंड जो आता है, जो आप लोगों ने इस विषय का मूल थीम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, बाकी विद्या, सुभाष जी ने काफी डिटेल में कई विषयों पर रखा। योगदान की जो विभिन्न विभूतियां हैं इस देश की जो विरासत में है, जो उन्होंने साहित्य वांग्मय को रिच किया है, समृद्ध बनाया है, ऐसा उन्होंने हम लोगों को भी बताया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यष्टि, समष्टि, समष्टि, सृष्टि और परिवेष्टि, इस पे ध्यान दिया है, दोनों पर ध्यान दिया है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, पहला। सेकंड, अच्छी संस्थाओं, गुणवत्ता युक्त संस्थाओं की चिंता करना, उनका निर्माण और उनका योगदान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही है मूल, जो मेरे समझ में आया आज तक। हमने जब सबसे बना है तब से लेके आज तक कहीं कहीं छोटे से उसके इतने मात्रा में सहयोग किए हैं, इससे थोड़ा सा ध्यान हमको आता है। विद्यालयों से लेके महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, अन्य संस्थाओं, गाँव, शहरों, सबके बीच में गोष्ठी, विभिन्न विमर्श के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों का जो मूल विद्या है, भारतीय विद्या है, विमर्श का है, संवाद का है, और संवाद के माध्यम से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होता है। केवल अकेला ऐसा है कि पूरे राष्ट्र को जोड़ने का काम किया है, और जहां से निर्माण होता है वो संस्थाओं पे ध्यान दिया है। अभी हम लोग इनिशियल लेवल पे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, तो विश्वविद्यालय कहता है कि हमने लागू किया है, लेकिन लागू करने के बाद तो मूल तत्व है छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण, समाजीय निर्माण। ऐसा होता है क्या? सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा है कहने में, सभी विश्वविद्यालय में जाता है, सभी विश्वविद्यालय में जाना होता है संगठन की दृष्टि से। तो लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं, लगभग 50 विश्वविद्यालय मेरे जाना हुआ है, एक नहीं 50 विश्वविद्यालय मेरे जाना हुआ है। अभी आप लोगों को देखा था NSIL हुआ था, इसी संदर्भ में हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय में, जहाँ से सबसे अधिक माननीय कुलपतिगण आए थे, उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, हम लोगों ने आयोजन किया था यहाँ पे। हम लोगों का सौभाग्य था, लखनऊ विश्वविद्यालय का लखनऊ का सौभाग्य था, खुद प्रभु ने काम हमको दिया था, और उसको हम लोगों ने संयोजन करने में सही टीम के साथ सुभाष जी भी थे, शैल जी थी, काफी लोग थे इसमें सहयोग किए उनमें।
तो एक लखनऊ का ये माइलस्टोन हुआ आशालू मार्केट। ये मूल तत्व है कि जो संस्थाओं के नेता हैं, यहाँ मंजुला जी के नेता हैं संस्था की, उनका योगदान है कैसे गुणवत्तायुक्त संस्था हम दें, तो कि हम स्वागत कैसे करें, कैसे चिंताओं का, समस्याओं का, चुनौतियों का समाधान कैसे करें, उनको इस लायक कैसे बनाएं कि बाद में उनका समाधान कर ले जाए। अपने मूल जीवन में जब आए हो तो कई भी समस्याएं, शंकाएं का समाधान और स्वयं कर पाने में सक्षम हो। ये संस्थाओं माध्यम शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान सुनिश्चित किया गया है। ऐसा होता है क्या? तो कहने में, भाषण देने में बड़ा अच्छा लगता है, इतनी मोटी किताब में एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर सब चीज हमने पढ़ा है, पढ़ते चले आए हैं, लेके दिया है, आप लोग पढ़ना चाहें पढ़े हो तो जितने ड्राफ्ट लेके अभी तक का जितना इम्प्लीमेंटेशन है उसमें, लेकिन मूल चीज है छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण। हमारे छात्र छात्राएं मानस पुत्र और मानस पुत्री है क्या? उस दृष्टि से हम देखते हैं क्या? उस दृष्टि से उनकी चिंता करते हैं क्या? उनके भविष्य की चिंता उस दृष्टि से करते हैं जैसे अपने बच्चों की चिंता करते हैं क्या? उनके सर्वांगीण पक्षों पर ध्यान देते हैं क्या? एक एक की पूरे समष्टि दृष्टि से देखते हैं क्या? दृष्टि तक सीमित है। मैं परमेष्टि और सृष्टि, परमेष्टि तो बात में आएगा, आत्मा परमात्मा का मिलन जो मूल शंकराचार्य जो अभी आपने व्याख्यान किया था वही व्याख्यान है। व्याख्यान की दृष्टि से ही हमारी स्नातक पद्धति वही है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य सनातन पद्धति ही है, इसका संरक्षण ही है। हमारा सम्मान करना पद्धति है, लोग सम्मान देना वही पद्धति है, संस्कार देना हमारी करने वाले बच्चों को संस्कार देना मेरी पद्धति यही है। सनातन पद्धति के तक जितना भी योगदान है, जितनी विभूतियां योगदान दी है, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय, जितने साहित्य हैं चलने के बाद सब वहीं समाप्त हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय साहित्य चलने के बाद उसके बाद समाप्त हो गया बड़े लंबे समय में। तो कबीर आपने कहा था धर्मपाल जी की ब्यूटीफुल ट्री, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के जाके विदेश की पुस्तकालयों से ढूंढ ढूंढ के निकाला है अपनी, और ये जो भारतीय विद्या है, जो वांग्मय है, वहां ढूंढ ढूंढ के निकाला है। क्या हम लोगों ने खोज करने का प्रयास किया है क्या? व्यक्तित्व निर्माण में क्यों लगते एक पक्ष था कि हम आके उनको अपने सिलेबस का जो सिलेबस दिया हुआ है उसको बांट के अपना सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, यही शिक्षा का योगदान है क्या? ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सनातन पद्धति भारतीय विद्या नहीं है। इस पे हम लोगों को चिंता करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही कहती है कि जो भारतीय विद्या है छात्रों के प्रत्येक, चाहे मानसिक अवस्था उसकी हो, चाहे उसकी शारीरिक हो, चाहे उसका अन्नमय कोष हो, चाहे उसका बुद्धि का विकास, लॉजिकल कैपेसिटी का निर्माण है, भूमिका द्वंद्व से कैसे इसको निकाला जाए, यही हमारे भारतीय विद्या ही है। व्यक्तित्व निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका है। पहले पहले इससे पहले जब आए थे इसमें तब भी हमने कहा था जितने मानवीय मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान में जितने सिद्धांत दिए गए हैं सभी एक ही है, केवल अंतर क्रियाओं के माध्यम से का निर्माण निर्माण होता है, तो बल दिया लोगों ने। लेकिन एक अकेला पंचकोश है, विवेक त्रिपाठी जी तो वो बोलते हैं पंचकोश सिद्धांत, पंचकोशी सिद्धांत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने फोकस किया पंचकोशी सिद्धांत पे। नेशनल करिकुलम में आया हुआ पंचकोशी सिद्धांत, इन को सबको पढ़ना चाहिए। पैतृ उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है, संस्कृत में भी उसका हिंदी अनुवाद भी हो गया, इंग्लिश अनुवाद भी हो गया है, हम उनके पास वांग में उपलब्ध है। बच्चों के अन्नमय कोश से लेकर के जो हम बताते हैं कभी कभी कि हम साधन के जो कभी कभी लेते हैं कि साधन और साध्य के रूप में लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या है जिनके माध्यम से जो लक्ष्य है हम लोगों का जीवन का आनंद है। शिक्षा का एक ही लक्ष्य है आनंद। आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? ये माध्यमों से होगी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। अगर हम छात्रों का ये कोर्स हम सीख कर ले जाते हैं तो मेरी उपलब्धि है छात्र शिक्षक के रूप में, माता पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में मेरी उपलब्धि होगी। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है। हम बच्चों के भविष्य ऐसा बनावे कि आजीविका शिक्षित कर सके, वो स्लाइड बनाए अपना इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर सके, वो ऐसे स्लाइड बनावे कि संचय भी कर सके, फिर इसमें होने वाली आर्थिक चुनौतियों का सामना भी कर सके। ऐसा हम स्टूडेंट बनावे, केवल उनको हम डिग्री में दें, डिग्री के हमारे भारतीय विद्या में नहीं देना है। जानते हैं
विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में वहां समय का चर्चा आता है, गूगल भी दिया हुआ है। 2700 शिक्षक 10,000 छात्र होते थे। सोशोलॉजी को मैं स्टूडेंट हूँ, सोशोलॉजी में नहीं होता था, लेकिन सभी विषय जानते हैं, सभी लोग शिवाजी लोग विवेकानंद जी, सत्य कुमार जी, सभी लोग बैठे हुए हैं, सूरज जी बैठे हुए हैं। उसमें सोशोलॉजी छोड़ के जितने विषय आपके इकोनॉमी के लेके जितने विषय आते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है, सभी विषय में पढ़ाए जाते थे। 2700 शिक्षक 10,000 छात्रों को दुनिया में लोग, दुनिया से छात्राएं जमाने पढ़ने आते थे इसमें। और कभी कभी तेनालीराम का देखिए, तेनालीराम आप लोग देखते होंगे। तेनालीराम की जो लॉजिकल कैपेसिटी है, जो उसकी समस्याओं का समाधान, चुनौतियों का समाधान, उसका विज्ञान में कोच क्या कहता है, उसका विज्ञान में कोच कैसा है देख लीजिए। ऐसे छात्र निर्माण करना है जो तो तेनालीराम जैसे जो मेधावी, जो अपने चुनौतियों का समाधान, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान खुद कर सके, और उनके ऐसे व्यक्तित्व पैदा करें जो देश समाज के लिए कारक हो, ऐसी विद्या हो जो संस्कार युक्त हो, कितना ज्ञान हो जाए। कभी कई माननीय पशुपालन में बोलते हैं कि हमने डीएम तो बना दिया, शिक्षक तो बना दिया, प्रोफेसर तो बना दिया, सब बना दिया, लेकिन अच्छे तो सब तो पा गए हैं क्या, लेकिन कुछ दायित्व का निर्वाह जो भारतीय विद्या में हम लोग पढ़ते हैं, जानते आए हैं, क्या कर पाते हैं क्या, पति के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटे के रूप में, शिक्षक के रूप में, तो पता है क्या, अच्छे डीएम तो हो गए, अच्छे पति है क्या, अच्छे पिता। ये जो ओल्ड एज होम है ये क्यों आया है, भाई भारतीय संदर्भ भारतीय में दिया हुआ है क्या, भारतीय संस्कृति में दिया। अभी संकल्पना देखिए, ऐसे छात्र निर्माण करना है जो अपने पिता अपनी माता को ओल्ड एज होम में भेजें, अपनी माता को ओल्ड एज होम में भेजें, ऐसा निर्माण करना है। सब लोग क्या है हमको, केवल एक दृष्टि जो हमको इस लायक बनाना है, केवल कि वो कमा सके, केवल भौतिक संसाधन, भौतिक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाने का काम करें, ये शिक्षा है क्या। तब तक उनका हम तो ऐसा बनाएं कि हम 40 साल में डायबिटीज पैदा करें, डायबिटिक लोग हो जाए, ऐसा निर्माण करना है क्या। तो सीढ़ी भी करें हाफे 40-50 साल की अवस्था में, ऐसे बने मनुष्य को बनाना है क्या। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल अस्पताल में इतनी भीड़ दिखाई पड़ रही क्यों, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है। मैं सामने कहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था का दोष है, जो भी मेडिकल कॉलेज में, अस्पतालों में, नर्सिंग होम में, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी फैमिली का दोष है, किसी दोष नहीं है, भीड़ बढ़ रही है। हमारा दोष भोजन की मात्रा, भोजन की गुणवत्ता, किस समय के भोजन, इसका भोजन किस माध्यम से कमाया गया, वो भोजन करते हैं किस माध्यम से कमाया गया है। लक्ष्मी की पूजा करते हैं केवल इसलिए कि अपने व्यक्तिगत सुख संतान के लिए नहीं, भगवान के निमित्त, धर्म के निमित्त, राष्ट्र के निमित्त, समाज के निमित्त, ये भारतीय विद्या है। निःशुल्क से उसकी आजीविका लायक बनाने की, आजीविका कमा सके, सम्मान से जी सके, संचय कर सके, लेकिन साधन की सूचिता भी बताई गई है कि साधन से हम कमाएं, ये भी हमको निश्चित करना पड़ेगा। शिक्षकों की भूमिका उसमें बड़ी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो है ही, और ऐसे शिक्षकों के रूप में भारतीय विद्यालय हमको पहले के एग्जाम्पल देते हैं। तो चाणक्य ने हमें ये कुछ किया क्या, उसने सोचे सभी लोग, चाणक्य ने व्यक्तिगत कभी भी किसी हित के लिए कुछ किया क्या उसने। युग का निर्माण करते हैं, ध्वस्त करके ही एग्जाम्पल लोग देते रहते हैं चाणक्य का, लेकिन उनका त्याग, उनका परिश्रम, उनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन किस लिए था, राष्ट्र की चिंता करते थे, केवल राष्ट्र की चिंता करते थे वो, चाहे वो संस्थाओं के रूप में हो, चाहे वो राजा के महामंत्री के रूप में हो, उनका निजी जीवन, सार्वजनिक जीवन अलग था। हमारे सामने भारतीय विद्या कितने कितने बड़े एग्जाम्पल है, अभी 50 नाम लिया। हमारी अभी ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात आती है, जेंडर इश्यूज की बात आती है, कैसे ये था कहाँ, 21 कहाँ थे हम लोग, और कहाँ आगे पहुंच गए हैं। हमको इसको देखना पड़ेगा, भारतीय विद्या को, भारतीय हमारे ज्ञान को, भारतीय हमारी विरासत को, भारतीय सांस्कृतिक और जितने रिच हमारे साहित्य थे, जितने वांग्मय थे, जितने हमारे संगीत थे, जितने हमारी सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना था, उसको देखना पड़ेगा।
सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना कितना कितना उन लोगों में समरसता थी, समानतावादी मूल्य था, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। में कोष 5 कोष हालांकि बहुत लंबा है, विश्व भर काम होता है, बहुत लंबा काम हुआ है। शिक्षा में देखते हुए क्योंकि सर्वांगीण विकास करना है तो पंचकोश पे और ध्यान देना होगा। अगर पंचकोश की विकास नहीं है तो उसमें केवल हम केवल विषय के ज्ञान दे देते हैं, पढ़ा देते हैं, नीट पूरे पढ़ा के कॉलेज में भेज देते हैं, बढ़ा के भेज देते हैं, उससे उनका निर्माण नहीं होना, उनका भविष्य नहीं बनना है। इसके लिए हमको पंचकोशीय सिद्धांत के ऊपर चिंता करना पड़ेगा, जिससे उनका मन ठीक रहे, मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, उसका स्वास्थ्य उसका स्वास्थ्य कोष ठीक हो, संस्कार हो, उसका मजबूत हड्डी हो उनकी। लेकिन जो हड्डी मजबूत हो किसके लिए हो? रक्षा के लिए हो, दूसरे रक्षा के लिए हो, किसी तंग करने के लिए नहीं हो। ज्ञान हो, ज्ञान हो तो आतंकवादी बनने के लिए नहीं, राष्ट्र के उत्थान के लिए हो, सामंजस्य के लिए हो, और राष्ट्र की प्रगति के साथ साथ सामाजिक संवेदना के लिए हो। ऐसा ज्ञान हो, ऐसा तर्क हो, ऐसा विवेक हो, स्वास्थ्य हो, स्वस्थ हो, किसके लिए हो कि हम राष्ट्र समाज के लिए उदाहरण दे सकते हैं, वाइटलिटी ऐसी हो, अपने काम करने की क्षमता 5 घंटे नहीं 10 घंटे काम कर सकते हो, कार्यक्रम हो के लिए। इसके लिए हमारे यहाँ सब दिया है, पतंजलि ने बताया, उन्होंने पतंजलि का योग है, मेडिटेशन है, आसन है, प्राणायाम है, व्यायाम है, गौर है, संस्कृत है, 24 घंटे में घंटे समय निकालते हैं क्या इसके लिए? अपने लिए थोड़ी देर दूसरे के लिए अपने लिए निकालते हैं क्या? अगर 1 घंटा हम समय देते हैं, 1.5 घंटे समय देते हैं 24 घंटे में, हमको लगता है अपने लिए भी, समाज के लिए भी, और इकोनॉमिक के लिए भी। जो मेडिकल में हम व्यय करते हैं उसमें कहते हैं मेडिकल में डॉक्टर का काम देने के लिए उसमें चाहिए, और देश के रखने लोगों के लिए उस काम में काम आएगा। रहेंगे तो 1 घंटे हम समय देते हैं क्या बच्चों से? मैं बताऊँ, मैं क्लास में जाता हूँ, बच्चा पूछता है बच्चे से, क्वेश्चन होंगे कॉलेज में, बच्चे पूछता है इसने आज टिफिन लेके खा के कौन आया, टिफिन लेके कौन आया, पूछता हूँ बच्चों से कितना बयान किसने किया, कौन दौड़ता है, कौन पूछता है तुमने योगासन करते हो क्या, तुम प्राणायाम जानते हो क्या, जाने कितना समय देते हो अपने स्वास्थ्य के ऊपर? समझ नहीं आती फेस पे, कीजिए देखिए चमक में आ पाएगी, इसकी क्या आवश्यकता नहीं किसी को। आज तक जीवन में हम लोग इतने इसके हो गए तो आगे के जीवन में सिर्फ मैंने कभी क्यों नहीं लगाया, विवाह नहीं लगाया, आज कभी क्यों नहीं लगाया, क्या हो सकता है कि आपके अंदर है। आप अगर हमारे प्राणायाम है, योगासन है, आसन है, मेडिटेशन है, उसके बाद मनोमय कोष आता है। मनोमय कोष मानसिक एकाग्रता कैसे आएगी, दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे आएगी, मन के हाल हार है, मन के जीते जीत हम लोग करते रहते हैं, लेकिन मानसिक मजबूती आएगी कैसे? इसके लिए विभिन्न प्रकार की भौतिक व्यवस्थाओं लोग जुड़े हुए हैं। भौतिकवादी समाज है, स्वाभाविक है, तरीके का ऐसा वातावरण है, आवश्यकता भी है, लेकिन उन चीजों को सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, सेवा, सेवा का सिद्धांत है। सेवा से जो मानसिक मजबूती मिलेगी वो मानसिक मजबूती के ही मिलेगी। अपने दायित्वों का समय से निष्पादन करना, पूरी निष्ठा के साथ करना, पूरे समर्पण के साथ करना, उससे आपको शांति मिलेगी। नियमित रूप से क्लास में बच्चों को शंकाओं का समाधान करना, समय से ठीक से पढ़ाना, उनको ठीक से उनकी चिंता करना, उससे हमको मानसिक व्यवस्था मिलेगी। या तो व्यक्ति के लिए जीना नहीं, दूसरे के लिए जीना। विवेक जी कहते हैं हमारे विवेक जी, यदि आप दूसरे के लिए जिएंगे तो अपने आप मजबूत होंगे, मानसिक मजबूती मिलेगी। देने वाला शुद्ध मजबूत होता है, लेने वाला मजबूत नहीं हो सकता कभी जीवन में। देने वाला बनिए जीवन में, किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा हमको समाज, हमको छात्रों को बनाना है। हमको कभी क्या आगे स्टेशन पर समोसा बेचता हुआ बच्चा दिखाई पड़े तो डरे में शिक्षक कहीं से नहीं, आपको ऐसे छात्र निर्माण करना है, सभी शिक्षकों का उनका विकास हो, उनकी सुधार बनाना, ये भी चिंता करना, ये करते हैं इस पढ़ाई का उनके आर्थिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा इसके, क्या वो सक्षम बनेंगे क्या? हालांकि मैं सक्षम में काम करता, दिव्यांगजनों के लिए हमने लंबे समय तक सक्षम में काम किया है, और दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम किया है, वो सक्षम अलग है। तो सक्षम उनको बनाना,
कि वो अपने लिए खुद के लिए जी सके, वो समाज राष्ट्र के लिए भी अपना योगदान दे सकें। फिर भी चिंता चिंता करना। अगर मन ठीक है आपका, तो मन ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। और मन अच्छा नहीं, मन मजबूत है, तो छोटे छोटे काम आपको बड़े लगते हैं। यदि आप दूसरी चिंता करेंगे तो मन व्यापक होगा, अपनी चिंता करेंगे तो हर तनाव में रहेंगे। सकारात्मक होना, पॉजिटिव होना, आशावादी होना, समाधान के लिए आगे बढ़ना, समाधान और किसी के सामने कुछ चुनौतियां ना देना, निगेटिविटी से नाता तोड़ना, ये मन में मानसिक मजबूती देगी आपको। लालच अपेक्षा ना करना, अपने भारतीय विद्या यही है क्या? यदि ये होता है तो आगे बढ़ते हैं, आगे कड़ी में विज्ञान में कोर्स की बात हम करते हैं। अगर इस लेवल पे हम पहुंच जाते हैं तो विज्ञान में कोर्स कर बढ़ते हैं, तो आपकी स्लाइड बनाना कैसे, स्लाइड क्या है, क्लास में नहीं बनाना, उनके बौद्धिक विमर्श, संवाद, उनके विभिन्न प्रकार के कैलकुलर, वो कैलकुलर इंटर डिपार्टमेंटल कई पाठ्यक्रम हम लोग इससे दिए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। उनको उनके ज्ञान का विस्तार करना, उनको अनुभव को बढ़ाना, उनको उनके सहभागिता करना, उनका अनुभवी ज्ञान बढ़ाना, उनके माध्यम से उनके अच्छी पुस्तकों को बताना, उनके योग्य भविष्य के योग्य, उनके लायक और आने वाले जो अपडेशन है, जो अद्यतन सूचनाएं हैं, उनकी तैयार रहना, उनको तैयार करना। संवाद के माध्यम से ही ज्ञान का उन्नयन होता है, तो संवाद के माध्यम से होता है, वन वे कभी नहीं हो सकता है। हमारी भारतीय विद्यालय को संवाद विमर्श यही दिया गया है, और बच्चों के साथ संवाद करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना कि बच्चों को पूछा कि आओ उनको पूछे तो समझे जो पढ़ते हो क्लास में, जो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आता है वहां से, तो हमारे तुम्हारी क्या पाठन वो किसी के कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं। संवाद के माध्यम से उनका विवेक आस्था बढ़ाना, लड़कियों का बढ़ाने की, उनको ऐसा ज्ञान देना कि वो संस्कारित हो। वैसे एमबीए आप जितनी विधि विधि आप देखते रहे, सीआई कितना है, उनकी स्लाइड बनाना, इस साइड की जो गतिविधियां हो रही हैं उनके, इससे बचें। यदि आप अपने स्वयं में समस्याओं का समाधान समाधान उनके विवेक की इस लेवल पर लाते हैं कि अपने समस्याओं का समाधान, भ्रांतियों का समाधान, यदि समस्याओं का विभिन्न प्रकार की विकट स्थितियों का समाधान स्वयं करने में सक्षम होंगे, आते हैं इसके ऊपर कहते हैं साध्य के रूप में, कभी कहते हैं हम साध्य के रूप में आनंदमय कोश, आत्मा का परमात्मा सुमिरन, स्पिरिचुअलिटी यहाँ हम कहते हैं, जहाँ कहते हैं सा विद्या मुक्त है, वह विद्या जो हमको सभी अवगुणों से मुक्त करे। लोभ, लालच, घृणा, द्वेष, आलस्य, जितनी विकृतियां हैं या से प्रकार के रोग, मनोरोग, इन लोगों से सबसे आपका करे। आत्मा को परमात्मा से मिलन आता है, ये अंतिम आनंदमय कोष है, जहाँ पर किसी की गलत ना सोचना, सहयोग के लिए आगे बढ़ना, अपनी भूमिका केवल विवाह करना, जो हमारी हमसे क्या अपेक्षा लोग होती है वो सोचना, किसी से अपेक्षा ना करना। ये आप विश्व समाएंगे जहाँ पे स्वयं आप इस लायक बन जाए कि सब समस्याओं का समाधान करने में आप सक्षम हो, किसी से अपेक्षा ना करें। ये गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वांगीण विकास करना इस छात्रों का, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताता है कि छात्रों के प्रत्येक पक्ष का विकास करना, ये मेरा लक्ष्य है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है, ये हमारी भारतीय विद्या है। बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद। Thank you so much, sir, for your keen insights on the Indian knowledge traditions. The next session for the speaker would join us online. So I request the team to please shut down the projector.
Thank you, Professor Jayashankar Pandey, for joining us and sharing your valuable time with us. Would just take a moment to proceed further. I request the audience to please be seated. Nobody is allowed to leave the auditorium until the next session gets over. Professor Pandey, for sharing your valuable time. We look forward to have you again. Professor M. K. Agarwal, sir, for joining us and sharing your valuable time. I request the audience to please be seated. Principal ma'am has given the instructions that nobody should leave the auditorium until the next session gets over. Please seated, everybody. The next speaker for the session is Professor Emeritus Shiv Kumar Chaturvedi, sir. Like to invite right now online. He is already connected to that. Professor Chaturvedi is from the Department of Civil and Environmental Engineering and Geodetic Engineering. Professor Chaturvedi is a noted scholar, researcher, teacher, writer on the topic Foundation of Sciences, Humanity, Art, the Shastra Upanishads, Ramayana, Mahabharata, and he has also written on the topic 10, 6, Buddhist, American Indian, Christian, and Islamic tradition. He also has several books and publications to his credit in the field of engineering and technology, and has been conferred with several awards and honors also in this regard. I request, sir, please present his views. I request the auditorium audience to please be seated. Professor Chaturvedi has already joined us. Can you hear us now? Yes. Sir, please. And, 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 unmute now. Please share your views on the topic with us. Please speak. Sir, can you hear us? आप हमें सुन सकते हैं?
नहीं, और अपना screen हटा दो। तो सुनाई दे रहा है। आवाज तो आ रही है ना, ऑनलाइन आवाज आ रही है ना? आ रही है। मैम बोले आवाज आ रही है। हेलो मैं यहाँ मत कुछ कीजिए, स्क्रिप्ट पे देखिएगा। हाँ सर बोल रहे थे अभी हेलो क्या वो बोले थे उसमें सर आप हमें सुना हेलो Thank you for sharing your views on the topic with us. Over to you, sir. हेलो यस सर। Yes, sir, we can hear you. I think, sir, आप हमें सुन सकते हैं क्या? हम वहीं से जाएगा मिनी दीदी जब बोलेंगे तो जाएगा। कैन आई शेयर माय स्क्रीन प्लीज हेलो हेलो सर आप हमें सुन पा रहे हैं? टेक्निकल स्टाफ कैन आई शेयर माय स्क्रीन प्लीज Over to you, sir. सर शेयर कर रहे हैं। कैन यू सी माय स्क्रीन प्लीज बोलना होगा बाहर। बोले ये सही है, सभी के लिए ऑन करिए। Sir, यस sir, we can see your screen now. हेलो हेलो See your screen. कैन यू हियर मी प्लीज Yes, sir, we can. हम आपको सुन पा रहे हैं। कैन यू हियर मी कैन यू सी माय स्क्रीन प्लीज Yes, sir. Sir, we can hear you and see your screen. ओके कैन आई स्टार्ट नाउ Over to you, sir. We invite you to share your views with us. लेट मी स्टार्ट देन Sir, please begin. हेलो कैन वी स्टार्ट देन नाउ Sir, you can please begin with your views. मैसेज कर दो ना। हेलो हम तो कर ही रहे हैं चैट बॉक्स में यहाँ। यस सर, यू कैन स्टार्ट। आई कैन स्टार्ट ओके ओके आई कैन स्टार्ट टाइप कर दो ना विकास। तुम करो ना मैसेज। ओके थैंक यू सो मच ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः ओम आंगिरासाय नमो नमः ओम कपिलाय नमो नमः ओम गर्गाय नमो नमः ओम सरस्वत्यै नमो नमः ओम वाक्देव्यै नमो नमः ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः I bow down to all the audience and I express my special gratitude to Srimati Aishwarya Singh and Dr. Vandana Dwivedi for giving me this opportunity to share some of my thoughts on very important topic. Today I am going to give some brief overview of bigger themes about the Bharati ancient Gyan Vigyan, failure of Hindu civilization, potential reawakening, some critical reflection. Despite this general introduction for me, and I went to America 42 years ago, directly from IIT Kanpur. And I have seen with close distances the intellectual academic world of America in various departments, including Department of Humanities. But still, I think I consider myself to be called a crazy maverick. It's my lonesome journey.
cautionary notes, because I will be using some Sanskrit terminology and English terminology. So I want to give you a cautionary note. Pollution, corruption, uprooting of Vedic wisdom through blind translation in English on one-to-one basis. Few example: Atman, Purusha, not soul, spirit or ruh. Paramatman, Brahman, Purushottam, Bhagwan, not God. Prakriti, not nature, nature an aspect of Prakriti. Maya, original Shakti with 16 primary powers, not illusion. Maya does create illusion too. Vigraha, not idol. Idol is considered to be a false god. Yoga is not mysticism. Dharma is not a religion. It is the greatest tragedy happened to Hindu civilization. Spirituality is full of contradictions, confusion, is not a Adhyatma yoga. I have identified working on hundreds of such technical terms. The scope and depth of this presentation, my dear listeners, only a few selective ideas due to time constraint, easy to understand levels. Corresponding technological development will not be discussed. I won't be able to share a full sense of beauty, wonder, and mystery hidden behind due to lack of time. Your full attention is appreciated. Please also note, ancient knowledge systems have documented an exploration and growth of about 64 kinds of knowledge fields, including Natsas, Sangeetsas, Chandasas, Kavyasas, and fields of various scientific and technological disciplines, humanities, and arts. For example, temple architectural layout carries various geometrical configuration, including fractal geometry. However, unfortunately, all this was not formalized in mathematical language. Following questions were raised both by Bharati Rishi and Western thinkers and scientists, starting with the Greeks and probably earlier civilization. But the answers are very different between the answers given by Bharati Rishis and Western thinkers. These are the primary questions raised all the way by Greek thinkers, Plato, Aristotle, and all that. Existential reality of the cosmos. Where does the cosmos come from? How does the cosmos come into existence? What is this cosmos? How does it work? Is there the end of cosmos? How will this end? And what the purpose or meaning behind the existence? Existential reality of human being. Who are we? Where do we come from? What is the purpose and meaning behind living? How should we conduct our living and why? What is the end point? Some popular slogans. Bharat had all the knowledge that was stolen by West and appropriated to rediscover without due credit to the source. My answer, this is a ridiculous and false statement with damaging consequences to the sincere effort toward the potential renaissance. Again, our knowledge is frozen in time. No changes, development, or growth can be made. They are frozen in time. My answer, this is factually wrong and goes against the very spirit of Vedic knowledge tradition. If you look at the Vedic knowledge tradition from ancient times, from starting with Rig Veda all the way to Smriti, you will find continuously changing ideas, thoughts, structure. But these changes are not arbitrary. These changes have been based on the foundational doctrines enunciated, illustrated, and talked about in the very first scripture, Rig Veda. Nowadays, for last 10 years, you can hear these voices. I hear very loudly, Bharat is suddenly on the verge of becoming the Vishwaguru. My answer, this statement is illusory, wistful, and empty.
Economic, geopolitical powers alone do not make a country Vishwaguru. Majority of Indian so-called intellectuals and political leaders are still trapped in the colonial and slave mentality. So my question is, are we trying to rediscover wheel by digging into the ancient knowledge system? Please note, lots of ideas have already been discovered by the West. So from my opinion, what is the importance value of digging into ancient Vedic wisdom? These are some of the primary answers. It has a historical value. It can promote long overdue self-identity, respect for the Vedas. It can remove and traces of colonial mental slavery and civilizational inferiority complex. It can impart the clues to establish new knowledge and wisdom to move forward in the technologically changing time, to engage in the assessment of technological advancement in the sense of holistic welfare and all-rounded upliftment of the humanities and potential corrective measures to achieve the harmonious interconnectivity, mutual relationship, and ordering of the inner world and outer world, and a path to eventually transcend them toward experiencing the state of eternal Divyanand and Divyaras. Charges against digging the ancient Vedic wisdom. Many intellectual thinkers in the West as well as India, so-called, I call them so-called intellectuals. To many, it may appear an act of cultural appropriation to read ancient cultures through the paradigms of the latest technology. Always we say, okay, oh, this is new thing has discovered. Oh, we already had this in my Vedas or my scriptures or my wisdom tradition, without ever thinking about what they are talking about. Nevertheless, claiming that abstract techniques of knowledge and artificial meta-languages belong uniquely to the modern industrial West is not only historically inaccurate, but also an act and one of the implicit epistemic colonialism toward cultures of other places and other times. This statement, very powerful statement, it answers all those who are confused. He's the professor of mathematics at the University of Rome. And I fully concur with this authentic, powerful statement. Western paradigm, broader themes. There are three fields I can picture out here in these three diagrams. Field of religion, ethics, and morals may entail ideas of God's salvation. Field of arts and aesthetics, sociology, anthropology, humanities, etc. Field of rationality, philosophy, and reason, and field of all sciences. All these fields are mutually exclusive. They hardly overlap, and they are antithetical. So this is the state of the knowledge of the West. These are mutually exclusive and significant intersection. Notice the separation, discordance. Field of religion is contradictory, antithetical to the field of sciences. Conclusion, there are several attempts were made to bridge the gap between sciences and religion. And unfortunately, we did not know at the time, even we do not know how Sarva Dharma Sambhav or Dharma Nirpeksh, the very fundamentally brutal, damaging idea in the Constitution. I have given a lot of talks on that as well, analyzed critically. That the long-standing antagonism between science and religion is irreconcilable, has been taken for granted. It is in the wake of recent controversy over teaching intelligent design and ethics of stem cell research, the divide seems as unbridgeable as ever. By Professor Eklund. There's a long list of antagonism, including persecution, punishment, science books burning the Western historical landscape. Thematic categories in classification as contrasting with the Western. We just see a couple of slides ago.
Bigger field is Sanatan Yoga Dharma Gyan Vigyan Kshetra. Simply saying Sanatan Dharma does not convey the all inherent object meaning to the world of Hindu wisdom. And there are 4 primary classifications: Adhyatmik Yoga Dharma Gyan Vigyan Kshetra, Adhyagnik योग धर्म ज्ञान विज्ञान क्षेत्र, आदि भौतिक योग धर्म ज्ञान विज्ञान क्षेत्र, आदि दैविक योग धर्म ज्ञान विज्ञान क्षेत्र. There is another entity called adharm agyan क्षेत्र. When this becomes overlapping reality of the other kshetras, other jnana vigyan kshetras, we run into deep darkness of ignorance and stupidity. Let me give you the briefly. Hello. Let me give you briefly the question about what is Yoga Dharma, what is Gyan and Vigyan. Let me give you a simple example. Let us look at the water as an example. Water is a yogic integration of hydrogen molecule and oxygen molecule, which is a source and ground for life. This is, I named this as the Adivautik Yoga. You will hear a lot of new terminology which has emerged through my contemplative, yogic contemplative meditation. Vigyan Kshetra, mechanistic and material science, investigating the microstructure and quantum structure of the hydrogen and oxygen molecule, investigating different phases and physical properties. That's the Vigyan Kshetra. Gyan Kshetra, knowing the properties at different scale in relation with its uses for the human and natural world. That becomes the Gyan Kshetra. Yoga Dharma Kshetra, identification of the various states with their corresponding quality. Yoga Dharma Kshetra. Yoga Dharma Kshetra requires the following: Nam, Rupa, Guna, Karma, time, and mutation. All these characteristics make up a set according to which you can define the entity. And this is called the Yoga Dharma Kshetra. I'm giving you 2 examples. Hopefully I have enough time. Otherwise I will skip one. One is the Agni Chayana Yagna, a source of artificial intelligence. Sankhya Yoga, case for synesthesia. The very first and central image of the Rig Veda and Vedic Sanatana Dharma is Yagna. The very first Devata is Agni, and the very first actions of karma are Yagna. Here is the central image, the beginning of Srishti, Yagna. First Chand, which is really Gayatri Chand, Rig Veda 1.1.1, Agni Mile Purohitam Yagdasya Devamartujam Hotaram Ratna Dhatumam. I sing lords to Agni, Purohit, the priest, the Devata, the Hotra, the chanter, the Ritvik, the performer who brings all wealth and blessing. My dear listeners, ponder upon Agni as a Devata, as a Purohit, as a Hotra, as a Ritvik, all in one yogic personality. Chandas is a Gayatri Chand, Matra 24, measure of Ganesh Shastra and Chanda Shastra. Time is continuous, containing peaks and values the way it is recited. There's a music there, Sangeet is there, music, sound, vibration. Vak is the language structure. Ratna means all kinds of wealth, including Vidya. The very first mantra consists of the hidden structure, which I have spelled out in brief here. Gyan, the experiment aspect. Agni Chand ritual arena, northern altar, 10,800 bits. Professor Frigistal was the first great Indologist whose help was instrumental to perform this in 1975 Nambudri Brahmins of Kerala. The most ancient, uniquely profound tradition has been banished.
contemporary AI logarithm can be tracked back to this yagna. 3,000 years of algorithmic ritual, the emergence of the computational space. This is written by Matteo Pasquinelli, is a professor of media philosophy, University of Arts and Design, and very, very internationally recognized authority in this area. And he has studied the Sul Sutra, 800 BC in India, and he has reconstructed based on the structure of the Vedi, how the bricks are arranged, how they are organized, and he is tracing back the origins of AI to this yagna. Agnideva is polymorphous, many forms, many attributes and physical property. He pervades all three realms, Prithvi Lok, Antariksh Lok, Sun Lok, in fact, all the galaxies. There are three manifestations. I'm not going to talk about it. Adi Bhautik, Adhyatmik, Adi Devik Sarup. What a wonderful union of three fields of existence in the following mantra addressed to Agnideva. There is a mathematical operation called matrix multiplication. If you really dissect this mantra from Yajurveda, contemporary scientific understanding of the sun's electromagnetic spectrum is divided into several regions. Common regions: radio-based, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays, and gamma rays. How do we unify this diversity through the eyes of Vedic Jnana Vigyan? I have coined a new term, emergence of a new Brahma. I call it the Vikiran Brahma. Another example. This is the Sankhya Yoga. I've been raising this question since 1990. And you will see here the Ahankar differentiates into these five element of smell, tanmatra, taste, form, touch, and sound. Sense of smell, sense of taste, sense of touch, sense of form, sense of sound. This comes out of the field of Ahankar Kshetra. They are separate and distinct, differentiated from the common source Ahankar. Can they manifest as coupled or intermingled? Yes, the condition called synesthesia. Oh my goodness. Color synthesia of letters, alphabet, tones of musical scale for numbers and for days of week. Men who tasted say, synesthesia is a fascinating world of blended senses. Synesthesia experience, you taste words, you see music, and hearing the color. This is the wonderful. I found that answer when I looked at the 1993 book by Dr. Richard Kayotube. And this comes out directly from the matrix of the Sankhya Yoga. Please note, this is a question I am raising to the audience. Indian doctors, biologists, saints, yoga practitioners did not discover this phenomenon. Why? We had to answer that question. Concluding thought. Despite the profound wisdom given the polymorphous attributes of the Agnidev manifesting all the three realms, Hindu mind failed. And I claim that, I emphasize that Hindu mind failed to physically identify, characterize, and experimentally generate electricity, and to originate long-distance communication through the electromagnetic propagation. To really comprehend the Vedic idea and the Vedic chants can reach to divine being through electromagnetic propagation. It's a information carrier medium. When we do the Agni Homa, and chant the hymns, they reach to the Swargaloka, to the divine world. How? I ask this question to many of such experts.
from tradition who deals with the yagna or homa. They did not have answer. Answer was within the Vedic tradition, and answer came out to be in manifested form through electromagnetic propagation in this cosmos, which is information carrying medium. Hindu civilization failings. There are two primary forces, internal forces and external forces. I will list down the internal forces. Everyone is talking about the external forces, imperialism, Macaulay, and all kinds of invasion. But internal forces are equally prominent to talk about. Decay and disappearance of Rishi tradition. It has been for several hundred years. Focusing only on the Advaita Vedanta, ignoring the Sankhya and Vaiseshik Darshan. Brahma Satyam Jagat Mithya. Jagat has become Mithya. All the ideas collapse. The whole world collapses. I collapse. Yoga collapses. Every entity on this planet collapses. That's meaningless. No original significant attempts to re-establish the lost unified ground. No further discoveries, innovations beyond the explosion of Bhakti Yoga tradition. Bhakti Yoga tradition was the only explosion of new dimensions in the Bhakti Yoga between 19th, 18th century. We have really ignored the natural world and associated indigenous physical sciences, loss of value and focus on wisdom tradition. Decay and disappearance of experimental sciences and technologies, corruption, pollution, and uprooting of wisdom tradition through translation into English language, even of the untranslatable Sanskrit technical terminology. Oh my goodness. Look at simple things. Look at the invitation card for the Vivaha Sanskar or Janma Divas Sanskar. Even learned people, Sanskrit Gyanis, Sanskrit teachers, professors, university professors, they write the word marriage or wedding. Even the Sabd, Vivaha Sanskar has disappeared. And I have done a lot of research on marriage and wedding, which are nothing more than the legal contract starting from the Greek tradition. We have sanskar, much more dimensional, much more wonderful, much more beautiful, but we are forgetting each and every kind of sanskar with its true spirit because we have never cared to review, revise, to innovate, to re-establish. Reason for several theories. Undermining, consequences, educational failure in almost every field of knowledge. List goes on. After 1947, total neglect, ridicule of traditional wisdom tradition. Independence, no. Political independence, no. It's only transfer of political power from white sahib to brown slaves. Yes. आप स्पीकर पे जाइए स्पीकर What are the consequences? Blind following of the West, alienation, and separation from the Vedic wisdom. Please note, new excitement, new drive, new initiative to Ruby Wisdom had been coming into Excuse me, sir. into Sorry to existence, interrupt you in but the between. real Chetana of Karma Yogi Jeel is not visible to me yet. Dogmas. Hello. Excuse me, sir. Sorry. Yes. I Sir, think it's having still ahead by 5-6 minutes, please. request you, although yours is a very enlightening session, but due to positive time, we just request you to please wind up in another 5 minutes. Yes, I will wind up in another 5 minutes because I started at 11:39. So I have still 5 minutes, please. All Sorry, sir. dogma, the modern materialist All reduction right, science. sir. 5 minutes, Thank give you. me 5 minutes. I will end up in the 5 minutes, please. Thank you so much. All reality is material or physical. These are the broader themes of the modern materialistic reductionist science. Consciousness is a byproduct neurological activity in brain.
This is an illusion. Matter is unconscious, minds are inside heads, nothing but activities of brain. Existence is purposeless and no goal or direction. Laws of nature are fixed, they will stay forever. Whole existence is linear from zero time till when God exists only in idea, human mind, and hence in human heads, and so on. Vedic wisdom tradition rejects the above dogma. And B is still in India. Scientists, philosophers, many of them intellectuals follow and blindly follow and accept these dogmas, which are failing in the Western world. Let me give you an example. A state of success in contemporary scientific research establishment. Those who have considered or considering the modern mechanistic reductionist science, not Gyan Vigyan, as the new God emerged in the West in the period of enlightenment, 17th century. More than 50% research result published in the field of chemistry is contradicted within a couple of years. More than 30% research result published in the field of medical sciences are falsified within a year, according to Journal of American Medical Association. Who should you believe? How you should look at the entire field of modern science and technology? I will say with a big question mark. Concluding thought, the blind spot, why science cannot ignore human experience. Adam Frank, Marcel Gleiser, and I want very distinguished thinkers have recently written this book. We are in a crisis that is global, civilizational, existential in scale, a conceptual transformation needed. The blind spot shows us why. This conceptual transformation will come, must come from the Vedic wisdom tradition. Burning issues, the whole humanity are facing toward achieving the needed peace, happiness, and all-rounded prosperity through appropriate knowledge and action. Education at all levels, from elementary to PhD, that is human-centric, environmental-centric, ethics and moral-centric, human total upliftment-centric, rather than based on the woke culture, corporate culture, and corrupted political force-centric. Address the fixed serious issues such as brokenness of family, dissatisfaction, meaninglessness, purposeless living, and very painful loneliness, especially after retirement, the pollution, corruption at all levels, all kinds of causing serious damage to pristine human body values and also this living planet. Real question, can and must the Vedic wisdom through innovation, growth, and development provide the necessary corrective measure? My answer is yes. That's the only hope for not only for India, the ancient country, but for the whole humanity. I have no time to talk about it. Many Western thinkers who are good friends of mine, they are one of the best thinkers. They are looking forward to the wisdom from Vedas and Vedic corpus for new day. Even outer space now succumb to human pollution. This is the latest information I want to share with you. In 1957, humanity is our first satellite launched. Today's number is 9,000 and there's 500,000 more planned. Space is no longer pristine. What was once lost unpolluted refuse of all the environment that affect planet Earth, outer space itself is now teeming with pollution, with living creatures and including humans facing the consequences. We cannot replace what traditionally done on Earth. Consequences moving fast and breaking things will persist for millennia. It is time to act now. In fact, we must prepare for potential space wars. We are fed up with the people, humanity on this planet. We are fed up with the natural world on this planet. So we have to go out in the space, or we have to go out on Mars and Moon to colonize and again start fighting and polluting the entire galactic system. This is where we are, and we blindly try to follow. Go ahead and do it.
Om Antim last mantra all together. Om Sahanavatu Sahanau Hunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejastu Navadhitumastu Ma Vidvasavahai. Om Shanti 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 Hari Om. With my folded hands, I bow down to all of you, asking for forgiveness for any offenses I might have committed during this talk. Also, I am requesting with my folded hand to please offer your blessings on me. This is a bucolic Anpar Damar Dehati. Thank you so much. Thank you so Thank much. you so much, sir, again. for your enlightened words. We come to the. Sir is trying to say something, I think. Thank you so much for end of this plenary session. I am sure this discussion has certainly enhanced the cognitive ability of the participants, and it has saved. Sir is connected with us. Okay, sir is connected with us. So I am sure the discussion today has certainly enhanced the cognitive ability of all the participants, and it has surely saved new perspectives of designing the future strategy in context of the Indian knowledge system and its implementation in NEP. I thank my dignitaries that were present over here today, Professor N.K. Agarwal, sir, Professor Jay Shankar Pandey, Dr. Subhash Mishra, and Professor Emeritus Shiv Kumar Chaturvedi, who joined all the way from USA. Thank you so much, dignitaries, for sharing your rich perspective with us. We are extremely grateful to all of you for taking out your valuable time out of your busy schedule and being with us here. We look forward to have all of you with us again in our future endeavors also. Thank you so much. Sir Abu. Last but not the least, I would like to extend uh, a sincere thanks to our audience, Madam Principal, and the delegates, seminar delegates who have come from distinct places and graced us with their presence. Thank you all of you for joining us. And thank you to the entire Navyu fraternity for working so hard on making this seminar a huge success. So we call off the plenary session and I request all of you to please be seated for a while. So we now begin with our technical session. We shall continue with that. This, over to the technical session team who will continue over here. By the time technical session team is just arranging, I would like to thank our Madam Principal, Professor Manjula Upadhyay, who has been a visionary herself, our academician par excellence, and a charismatic leader who does not believe in following the footsteps, but believes in being original. She only has that power and energy of a visionary to dream and to achieve it. कितने प्रेजेंटर्स हैं जो यहाँ पर अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी रूम में अलॉटेड हैं आप और आपका भी यही होगा कितने फाइव ओके the technical session will continue in this auditorium now. I request the technical session team to please take over.
कंप्यूटर रूम मिला हुआ है, तो वो अपना हाथ खड़ा करे। बहुत लोग हैं। 8 नंबर में किनको प्रेजेंट करना है? बस ये जितने लोग यहाँ पे हैं, उनको या तो वो दर्शक है या तो यहाँ पे पेपर प्रेजेंट करना है। रूम नंबर 1 को